We were discussing in the last class the performance measures for divisions, in which we discuss performance measures ROI, RI. And if we are evaluating the performance based on divisions, then what is the problem? Then there is two other areas, which is EVA, economic value added, and SVA. Economic value added is very important for APM exam. Even that is very important in SBL exam also. Strategic business leader case study exam also. That is very important in सीमा case study exam also. और अभी जो सौरभ ने क्वेश्चन पूछा, that was based on EVA also. Because EVA means residual income, super profit, simple language. But not purely based on accounting profit and accounting capital employed. Adjust the profit which is calculated based on PL account, adjust the profit, adjust the capital employed. What adjustments? For those adjustments, there is no law, there is no company law, there is no regulatory thing anywhere in the world. That adjustments is based on logic. That you will be calculating super profit, residual income, EVA based on logic. The logic says that if I am doing business in Saraf Academy, Saraf Gurukul Private Limited, then I have invested my money in the business as a shareholder, me and my wife. We have taken loan from ICICI Bank. That is a term loan of 15 years. We have suppliers जिनको कुछ पेमेंट करना बाकी है. We have employees, those who have worked in the current year, in the current month up till 20-21 days, उनका सैलरी बाकी है. यानी कि कुछ शॉर्ट टर्म लाइबिलिटीज है, then there are long term. We say that business is done. The business funding or business finance or business is done with long term funding. अगर मेरे को कोई सप्लायर को पैसा देना है, वो तो आना जाना है, डेली हो रहा है, इट इज हैपनिंग डेली. बट लॉन्ग टर्म फंड्स इज नॉट ओनली द शेयर होल्डर्स मनी. फ्रॉम वेयर एवर डिवेंचर्स, बॉन्ड्स, लॉन्ग टर्म लोन फ्रॉम बैंक, जहां से भी हम पैसे ले रहे हैं, जिसको हम 2, 4, 5, 10 साल यूज करेंगे, दैट इज वी आर डूइंग बिजनेस विद दैट मनी. अब इफ आई एम डूइंग running a public sector organization, or I am running an educational institute, or I am running an hospital, maybe government का, maybe private hospital. But हर आदमी को ये सोचना है कि आप जो बिजनेस में पैसे लगाए हो, क्या उसके ऊपर आप जस्टिफाइड अर्निंग्स जनरेट कर रहे हो. इवन फॉर पब्लिक सेक्टर ऑल्सो, मे बी द पब्लिक सेक्टर नॉट है प्रॉफिट मोटिव, बट आप जो रिसोर्सेस लगा रहे हो वो कंट्री में लिमिटेड है, दुनिया में लिमिटेड है. आप वो रिसोर्सेस को यू कांट वेस्ट. यू हैव टू जनरेट एटलीस्ट व्हाट शुड बी द मिनिमम रिटर्न. तो हम पहले कैपिटल इंप्लॉयड निकालते हैं कि भाई हमने बिजनेस में कैपिटल इंप्लॉयड क्या लगाया, उसमें एडजस्टमेंट क्या होता है. इफ आई एम सेइंग दैट आई एम रनिंग सराफ एकेडमी फॉर 30+ years. एज अ सराफ गुरुकुल आई स्टार्टेड माई कंपनी अराउंड 15-16 years बैक. मैंने उस समय मान लीजिए ट्यूशन सेंटर खरीदा, लोन लेकर वगैरह वगैरह बहुत चीज किया. लेकिन जो ट्यूशन सेंटर मैंने खरीदा, जो ऑफिस है, उसका वैल्यू आई पेड एट दैट टाइम अराउंड 1.2 करोड़. अभी तो उसका वैल्यू 4-5 करोड़ है. मे बी रिसेशन, मे बी कोरोना, एवरीथिंग इज देयर, बट उसका वैल्यू कम से कम 4 करोड़ करीब है. मार्केट वैल्यू बताता है. थोड़ी ना मेरे पास 4 करोड़ आ रहा है, थोड़ी ना आई एम सेलिंग द सेंटर, आई एम नॉट सेलिंग. Where I will do the business. So my office is there. When I am calculating my return, I need to calculate on 4 crore, not on 1 crore. Maybe in the balance sheet, I am still writing my land and building at 1 crore. Because I am not following revaluation principle. Accounting का cost model I am following. कब revaluation करेंगे, किससे कराएंगे, मेरे पास टाइम नहीं है. बट मेरे को पता है कि उसका वैल्यू 4 करोड़ है. तो मेरे को बिजनेस में अर्निंग जनरेट करना है 4 करोड़ के ऊपर, नॉट ऑन 1 करोड़. वी से दिस इज कॉल्ड फेयर वैल्यू ऑफ एसेट्स, और वी से दिस इज रिप्लेसमेंट वैल्यू ऑफ एसेट. They are talking in technical language in books.
रिप्लेसमेंट वैल्यू, कि जो बिल्डिंग मैं यूज कर रहा हूं वो बिल्डिंग अगर मैं आज मार्केट में वैसा ही खरीदूं तो पैसे कितने लगेंगे, व्हाट विल बी माई कॉस्ट. दैट वैल्यू इज द रेलिवेंट वैल्यू टू एनालाइज वेदर आई एम अर्निंग एक्स्ट्रा. तो मैं अगर अपने बिजनेस में जितना भी एसेट्स है उन सब का फेयर वैल्यू लेता हूं और उसमें से शॉर्ट टर्म लाइबिलिटी, क्रेडिटर, सैलरी एंड ऑल दैट माइनस कर देता हूं, तो अल्टीमेटली आई एम गेटिंग लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट इन द बिजनेस. In the balance sheet, maybe it is coming 1 crore, 2 crore. But if I will go with the fair value, with the replacement value, then it may be coming, say, 4 crore. So if I am earning on 4 crore adequate income, then only I will say that I am doing good business. Not for me, for the government, for the society and all that. Because अगर कोई गवर्नमेंट कंपनी है, पैसा लगा हुआ है गवर्नमेंट का, हम ही लोग का लगा हुआ है, हमने जो टैक्स दिया है वही वहां इन्वेस्टेड है, तो उसको काम तो करना होगा ना. बिकॉज वी कैन से इन सोशल मीडिया दे आर नॉट, बट वी नीड टू सी दैट मे बी इट्स नॉट फॉर प्रॉफिट, बट आर दे जनरेटिंग प्रॉपर रिटर्न. तो अगर 4 करोड़ मानते हैं और मानते हैं मार्केट में अगर शेयर होल्डर या लोन प्रोवाइडर्स लोग जो पैसे देंगे 4 करोड़ इस टाइप के बिजनेस में, लाइक वी आर एंगेज्ड इन द ट्रेनिंग इंडस्ट्री बेस्ड ऑन रिस्क एंड ऑल दैट, ऐसे मार्केट में रिटर्न मान लीजिए 12% होना चाहिए. उसके लिए भी और डिटेल में जाना पड़ेगा, व्हाट द शेयर होल्डर रिटर्न शुड बी, लोन प्रोवाइडर सबका निकलेगा. तो मेरे को 4 करोड़ के ऊपर 12%, 48 लाख अर्निंग साल में होना चाहिए. 48 लाख अर्निंग्स, नॉट नेट प्रॉफिट, बिकॉज आई एम कंसिडरिंग 4 करोड़ शेयर होल्डर्स मनी, लोन मनी, लॉन्ग टर्म फंड्स. सो आई एम सेइंग दैट फॉर द लॉन्ग टर्म फंड्स the company should be earning 4 crore का 12%, 48 लाख. अगर हम सराफ एकेडमी में 48 लाख से ज्यादा कमा रहे हैं, नॉट नेट प्रॉफिट, जो अर्निंग्स हम उन लोगों के लिए कमा रहे हैं, इफ दैट इज ग्रेटर देन 48 लाख, देन द डिफरेंस इज कॉल्ड EVA, इकोनॉमिक वैल्यू एडेड. EVA कैन बी निगेटिव. इफ आई एम अर्निंग लेस देन 48 लाख, निगेटिव. It will be positive. I am earning greater than 48 lakh. If I am earning 48 lakh, I am doing good for Saraf Academy. I am doing good for community. I am doing good for the whole country. मैं सारे ह्यूमन कम्युनिटी के लिए अच्छा कर रहा हूं. इसमें यह नहीं आता कि सर प्रॉफिट कमा. सर अगर आप कोई गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, नॉट फॉर प्रॉफिट है, हाउ दैट ऑर्गेनाइजेशन विल सर्वाइव इफ दैट ऑर्गेनाइजेशन कैन नॉट सर्व, if that organization cannot serve those who are connected with them to properly. Employee को सैलरी देना, रेंट देना, अगर रेंटेड है गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, पब्लिक को बेनिफिट देना, कस्टमर, तो वो तो बगैर प्रॉफिट तो होएगा नहीं. इट इज नॉट अ प्राइम मोटिव, बट इट इज अ मोटिव. इकोनॉमिक वैल्यू एडेड, फोकस ऑन दैट. तो आपको कैपिटल एम्प्लॉयड में और भी बहुत सारे एडजस्टमेंट्स करने हैं अदर देन दिस फेयर वैल्यूएशन और रिप्लेसमेंट. मान लीजिए मैंने कुछ नया एडवर्टाइजमेंट किया, एक हो गया एडवर्टाइजमेंट, मान लीजिए थोड़ा सा गूगल एडवर्ड में पैसा दे दिए, थोड़ा लिंक्डइन में कर दिए, एक हो गया वो. एक हो गया आई एम डूइंग एडवर्टाइजमेंट टू नेक्स्ट लेवल. व्हाट आई एम डूइंग, सपोज आई एम कनेक्टिंग विद द ACCA सीमा इंस्टीट्यूट एंड आई एम मेकिंग अ प्रपोजल कि हम लोग ACCA, सीमा, CPA ये सबको प्रमोट करने के लिए ये एक्टिविटी कंडक्ट करेंगे कि हम लोग स्कूल कॉलेजेस में जाएंगे, स्टाफ को रखेंगे, स्कूल कॉलेजेस में इवेंट करेंगे, MBA यूनिवर्सिटीज में जाएंगे, ऑनलाइन इवेंट करेंगे, सबको इंगेज करेंगे, इसका कम्युनिटी को बढ़ाएंगे. दैट इज नॉट द नॉर्मल थिंग. द बेनिफिट ऑफ दैट आई विल नॉट बी गेटिंग ऑन द नेक्स्ट डे. आज इवेंट किए कल ही बेनिफिट आएगा ऐसा थोड़ी ना है. इट विल टेक टाइम. ACCA इंस्टीट्यूट, सीमा इंस्टीट्यूट, CPA, CMA, इंडियन CA, ऑल आर डूइंग दोज एक्टिविटीज. मैं भी उनके साथ में अपने लेवल पे वो करूंगा. उससे मेरे को फायदा धीरे धीरे होगा, 1 साल, 2 साल, 3 साल. और मे बी देयर इज अ फार्मास्यूटिकल कंपनी या कोई जहां पर R&D, व्हेन वी डू रिसर्च वी विल बी एबल टू डेवलप न्यू ड्रग्स एंड ऑल दैट. उसका फायदा हमें धीरे धीरे होगा. अकाउंटिंग इज वेरी कंजर्वेटिव. अकाउंटिंग बोलता है व्हेन देयर इज नो श्योरिटी ऑफ गेटिंग बेनिफिट यू राइट ऑफ दोज एक्सपेंडिचर्स. अगर मैं कोई भी मार्केटिंग करता हूं फॉर ग्रोथ ऑफ द कम्युनिटी एंड ऑल दैट विच इज वेरी ह्यूज अमाउंट गोइंग टू गिव बेनिफिट इन 3-4 years,
but accounting provision says that it will be written off in PL account. अगर research है written off in PL account IS 38. So accounting profit is very conservative. Accounting profit is putting more pressures on accountant to prepare financial statement. But when we are calculating EVA, we will not consider these types of expenditure as an expenditure. We will consider that as a part of asset. R&D, advertisement, research development, कोई भी ऐसा चीज जिसका फायदा आपको 3-4 साल में होगा, लेकिन अकाउंटिंग वे में वो खर्चा है. PL account it is an expense, but in calculating EVA that is not treated as an expense. So आप प्रॉफिट में उन सब चीजों को ऐड करेंगे. जो प्रॉफिट आपका निकाला हुआ है अकाउंटिंग बेसिस, you will add up these which are shown as an expense because which are not an expense. They will be added in the capital employed as an asset. That is a capital expenditure for EVA calculation, but in books of accounts that is not a capital expenditure. That depends upon information given in the question. Normally general language, advertisement, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, कुछ ऐसा चीज जिसका फायदा आपको सालों में मिलेगा. क्वेश्चन को कितना भी घुमाया जा सकता है. वी नीड टू सी दैट दे आर कैपिटल, दे आर नॉट एक्सपेंस. तो प्रॉफिट को भी एडजस्ट करना है एंड कैपिटल इंप्लॉयड भी एडजस्ट करना है. एनी नॉन कैश एक्सपेंडिचर, depreciation, amortization, provisions and anything. If we talk depreciation, we are saying depreciation non-cash. लेकिन अगर मेरे पास 4 करोड़ का प्रॉपर्टी है जिसका वैल्यू आज के दिन 4 करोड़ है, तो 4 करोड़ का प्रॉपर्टी मेरे को फ्यूचर में जब भी खराब होगा कोई है तो वापस से रिप्लेस करना पड़ेगा ना. तो मेरे को पैसे अलग से रखने पड़ेंगे टू रिप्लेस द एसेट इन फ्यूचर. सो इवन दो डेप्रिसिएशन इज अ नॉन कैश, but we consider depreciation as an expense on 4 crore, not on 1 crore. मतलब accounting income is calculated by deducting depreciation on 1 crore, but you will deduct depreciation on 4 crore. You add back depreciation as per accounts, you deduct depreciation as per fair value replacement value, or you do the net adjustment, जैसी आपकी मर्जी हो. अगर कोई प्रोविजंस है जिसको हमने प्रोविजंस फॉर डाउटफुल डेट्स और या प्रोविजंस फॉर फ्यूचर लॉस समथिंग कुछ भी IS 37 प्रोविजंस हमने क्रिएट किया है, दैट विल नॉट बी ट्रीटेड एज एन एक्सपेंस. जब होगा तब देखा जाएगा. इन द प्रॉफिट दैट विल बी एडेड बैक. और वो प्रोविजंस कैपिटल इंप्लॉयड में एज अ करंट लाइबिलिटी इट वॉज कंसिडर्ड. व्हेन इट इज नॉट अ प्रोविजन देन इट नीड टू बी एडजस्टेड इन कैपिटल इंप्लॉयड. सिंपल अकाउंटिंग फंडा. Suppose there is provisions for doubtful debts last year 5 lakh. In the current year provisions for doubtful balance is 6 lakh. 5 lakh to 6 lakh means current year addition in the provision 1 lakh. In the PL account you must have debited 1 lakh and in the balance sheet provisions is written as 6 lakh. तो आपको प्रॉफिट में 1 लाख ऐड करना है नॉन कैश एक्सपेंडिचर. कैपिटल इंप्लॉयड में 6 लाख ऐड करना है बिकॉज प्रोविजंस इज नॉट अ लाइबिलिटी. आप टोटल एसेट्स माइनस लाइबिलिटी करंट लाइबिलिटी में प्रोविजंस लेस कर रहे हो. वो प्रोविजन कोई लाइबिलिटी नहीं है. प्रोविजन इज नॉट अ थिंग. आप उसको माइनस नहीं करोगे. तो यू नीड टू एडजस्ट योर कैपिटल इंप्लॉयड, यू नीड टू एडजस्ट योर प्रॉफिट बिकॉज ऑफ नॉन कैश आइटम्स. डेप्रिसिएशन, नॉन कैश आइटम, एडवर्टाइजमेंट, R&D. The fourth item we can say taxation. We are saying that in EVA we will compare the income which we have generated with the income which we should be generating. The income which we have generated is called NOPAT, net operating profit after tax. It is operating profit after tax. In the last class I was saying that suppose company EBIT operating income is 1 lakh. Now from 1 lakh actually we need to deduct interest. If we have taken borrowed loan then interest less karna hai. Then we will pay tax to government. EBIT minus I PBT minus tax will give you PAT. But here when we calculate NOPAT we don't deduct interest. Why?
Because when we are calculating capital employed, we are saying shareholder money and long-term money dono. When we are saying that we need to generate on the capital employed income, that is for shareholder, for debt holder दोनों. तो the profit should be calculated कि हमने जो कमाया दोनों के लिए. So interest will not be deducted. So in 1 lakh I will deduct straight away, suppose tax rate 30%. So 1 lakh minus 30%, 30,000. So no PAT, net operating profit after tax 70,000. But आपको एग्जाम में क्वेश्चन में देगा कि 1 लाख आपका EBIT था, आपका इंटरेस्ट 20,000 था, द सेम एग्जांपल आई टुक डे बिफोर यस्टरडे, और आपका पीबीटी 80,000 था, और 80,000 पे टैक्स ईच 30% 24,000, तो आपका प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 80 माइनस 24 इज 56,000. आपको 56,000 को 70,000 बनाना है, बिकॉज नो पैट इज 70. दो तरीका, तीन तरीका है, 3 मेथड. या तो आप सीधा सीधी 1 लाख से चालू करिए, 30% लेस करिए, 70,000. दूसरा तरीका है, यू स्टार्ट विथ 56,000, एड 14,000. व्हाट इज दैट 14,000? इंटरेस्ट आफ्टर टैक्स. 20,000 इज इंटरेस्ट, 70% 14,000. या तीसरा तरीका है, 56,000 जो आपका इनकम आया है उसमें आपने टैक्स कितना लेस किया है? 24. लेकिन अगर आप इंटरेस्ट का टैक्स बेनिफिट को कंसीडर नहीं करते हैं, 20,000 का 30% 6,000, उसको अगर आप एडजस्ट करते हैं तो 56 माइनस 6 विच इज कमिंग 50, एंड देन प्लस 20,000 इंटरेस्ट, दैट इज कमिंग 70. अब कौन सा क्वेश्चन में क्या करना है मेरे को कैसे मालूम? वो लोग कैसे आपको क्वेश्चन देंगे ये मैं नहीं बोल सकता. और मैंने देखा है कि स्टूडेंट ईवीए का कैलकुलेशन में बहुत गलती करते हैं. थोड़ा सा लैंग्वेज ऐसे फैसे लिखने से दे बोल्ड, क्लीन बोल्ड. 1 लाख ईबीआईटी माइनस 30%, 30,000, 70,000 निकालना है, जो भी दिया रहे क्वेश्चन के अंदर. You don't need to consider a tax benefit of interest. You need to consider a tax on your income, operating income totality. आपको इंटरेस्ट का टैक्स बेनिफिट नहीं सोचना है, बिकॉज आपको यह सोचना ही नहीं है कि लोन और शेयर होल्डर अलग है. दोनों एक है, दोनों फाइनेंसर है, दे आर फंडेड. हमें क्या पैसा कमाया उस पर टैक्स देना है, विच इज नॉट अकाउंटिंग टैक्सेशन. अगर क्वेश्चन में डेफर्ड टैक्स वगैरह के बारे में देता है, डेफर्ड टैक्स इज नॉट अ पेमेंट, नॉन कैश, उसको हटाना पड़ेगा. वी चार्ज एज पर अकाउंटिंग पीएल अकाउंट, टैक्स एक्सपेंस, करंट टैक्स प्लस डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटी माइनस डेफर्ड टैक्स एसेट, तब टैक्स एक्सपेंस आता है. जो भी डेफर्ड टैक्स का अफेक्ट टैक्स के अंदर है हटा दीजिए. यू जस्ट नीड टू माइनस कैश टैक्स पेमेंट. व्हाट इज कैश टैक्स पेमेंट? जो पेमेंट आपने सच्ची मुच्ची गवर्नमेंट को किया, और इंटरेस्ट का टैक्स बेनिफिट को भी कैश टैक्स पेमेंट मानना है. इंटरेस्ट के ऊपर टैक्स बेनिफिट कंसीडर नहीं करना है, बिकॉज नहीं तो 70,000 यू विल नॉट बी गेटिंग. वाई 70,000? बिकॉज वी आर सेइंग इन ईवीए शेयर होल्डर्स आर नॉट द ओनर्स. दोज हु हैव गिवन लॉन्ग टर्म फंड्स दे ऑल आर ओनर्स. लेकिन टैक्स तो एक्सपेंस है, तो हम इंटरेस्ट लेस करे बगैर पूरा टैक्स लेस करेंगे जो कि ईबीआईटी के ऊपर कैलकुलेट होगा. देन यू विल बी गेटिंग नो पैट, नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट आफ्टर टैक्स. यानी कि द एडजस्टमेंट्स विल बी एडवर्टाइजमेंट, R&D, depreciation, non-cash expenditure, taxation, deferred tax. All these adjustments will be there in profit, in capital employed, fair value of assets, depreciation as economical way, then provisions balance, non-cash balance, advertisement and all that capitalized. Those adjustments need to be done in capital employed. This is not the end. There are endless adjustments which cannot be written in points. But एग्जाम में वो इनके ऊपर फोकस करते हैं. क्यों? बिकॉज प्रैक्टिकल लाइफ में ज्यादातर यही एडजस्टमेंट्स ईवीए में आती है. EVA is not required to be calculated by any organization anywhere in the world legally. Neither based on accounts, neither based on company law, कुछ नहीं है ऐसा. लेकिन इंडिया में भी EVA
पेंट्स कंपनी, आईसीआईसीआई ड्यूलक्स, एशियन पेंट्स और बहुत सारी कंपनियां जिनको लगता है कि दे आर क्रिएटिंग पॉल्यूशंस, दे आर कैलकुलेटिंग ईवीए, इकोनॉमिक वैल्यू एडेड, वो लोग निकालते हैं। और अकाउंट्स में बचपन में कभी पढ़ा होएगा, दे से दैट कि हमने ये सारा ईवीए किसको किसको कैसे कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया, उसके अंदर सैलरी वगैरह भी ऐड कर दिया जाता, उसको बोला जाता वैल्यू एडेड। बट दिस इज नॉट वैल्यू एडेड अकाउंटिंग वाला, इकोनॉमिक वैल्यू एडेड। हम लोग ऐसा बोलते हैं, व्हेन वी आर जनरेटिंग ईवीए, it is a far better measure than RI or ROI. Major comparison with RI, because RI is purely based on accounting, and accounting is very conservative. Accounting is very rigid. We are not saying accounting bad क्यों है, वो नहीं बात कर रहे, लेकिन accounting बहुत rigid है। तो विंडो ड्रेसिंग करते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, तो RI से पता नहीं चलता कि एक्चुअली हम सुपर प्रॉफिट जनरेट कर रहे हैं कि नहीं। बट यहां ईवीए में हम अकाउंटिंग नहीं सोच रहे, हम सोच रहे पैसा कहां से आया, जहां से भी हमने लॉन्ग टर्म फंड्स रेज किया, वहां के लिए हमने क्या कमाया, क्या हम सोसाइटी के लिए क्या कर रहे हैं। और अगर हम ईवीए जनरेट कर रहे हैं, अल्टीमेटली दैट ईवीए इज डायरेक्टली कोरिलेटेड विद शेयर होल्डर्स वेल्थ मैक्सिमाइजेशन। अगर ईवीए है, दैट मीन्स हम शेयर होल्डर के लिए एक्स्ट्रा कमा रहे हैं। It is related with cash principle. It is not related with accounting data. Start उससे होता है, लेकिन we are doing adjustment which are non-accounting. We are considering the shareholder wealth maximization in direct way. But problem क्या है? Adjustment का कोई लिमिट नहीं है. There is no law. जिसको जो मर्जी आए प्लस माइनस करो. एग्जाम में मान लीजिए ऐसे करना है, बट प्रैक्टिकल लाइफ में यू कैन डिबेट विथ मी, मैं ये एडजस्टमेंट करना चाहता हूं, हो सकता है आप सही है, मैं भी सही हूं। ईवीए वी कैन सी दैट कितना सारा फैक्टर्स है जिनको सोचना है, एंड स्टिल इट इज स्टार्टिंग फ्रॉम अकाउंटिंग डेटा। तो ईवीए अगर बढ़िया है, खराब है, ठीक है खराब है, बढ़िया है तो किस किस कारण से है, वेदर बिकॉज ऑफ गुड एसेट्स, वेदर द मनी वॉज रेज एट ए लोअर कॉस्ट, वेदर द बिजनेस इज रिस्की, देयर आर मेनी फैक्टर्स। ईवीए निकालने के लिए आपको जो रेट लेना है, कैपिटल इंप्लॉयड को मल्टीप्लाई करना है, कॉस्ट ऑफ कैपिटल, वो निकालने का कोई कॉस्ट ऑफ कैपिटल एनीवेयर देयर इज नो लॉ, यू नीड टू डू परमुटेशन कॉम्बिनेशन, देन ओनली यू कैन गेट कॉस्ट ऑफ कैपिटल, रिस्क पे डिपेंड करता है। सो देयर इज नथिंग विच वी कैन से दैट कि कॉस्ट ऑफ कैपिटल ये सही है, इट इज सब्जेक्टिव। बट देन आरओआई, आरआई आर नॉट अ प्रॉपर मेजर टू एनालाइज कि कंपनी इज गोइंग ग्रोइंग एंड कंपनी इज गिविंग wealth to the shareholders, company is maximizing the wealth, इसीलिए ईवीए कंसीडर किया जाता है। ड्रॉबैक्स तो हर चीज का है, बिकॉज नथिंग इज देयर वेयर देयर इज नो प्रॉब्लम। हर जगह कुछ ना कुछ कोई भी मेथड में प्रॉब्लम है, फॉर दैट रीजन देयर इज नो सिंगल परफॉर्मेंस मेजर। ईवीए कैन बी कैलकुलेटेड फॉर अ पर्टिकुलर यूनिट, पर्टिकुलर डिवीजन, पर्टिकुलर डिपार्टमेंट, इट कैन बी कैलकुलेटेड फॉर द होल ऑर्गेनाइजेशन। ITC company can calculate EVA for their different business, strategic business unit, and they can calculate EVA for the whole organization. अगर कोई यूनिट है जिसमें इन्वेस्टमेंट पर्टिकुलरली किया हुआ है, देन व्हाट दैट यूनिट इज जनरेटिंग एक्स्ट्रा, वो यूनिट हेल्प कर रहा है कि नहीं ऑर्गेनाइजेशन को, सोसाइटी को, स्टेक होल्डर्स को, उसके लिए क्या कंट्रीब्यूशन है, दैट कैन बी एनालाइज्ड बेस्ड ऑन EVA. So it is a division measure also, and it is a company level measure also. A similar but superior measure to RI for appraising divisional and organizational performance. Adjustments are made to profit and capital employed to truly reflect the economic value generated. Net operating profit after tax minus adjusted capital employed into WACC. So we'll give you super profit EVA. Except a project division company if they are generating EVA positive. In reality there are 100 plus, I should say 100 plus possible adjustment could be made in the profit and capital employed. Some of the more common examples which are asked in the exams are adjustments of first of all profit, accounting depreciation added, provisions adjusted, advertisement, R&D, employee training adjusted. Employee training not normal,
You are giving training to employee which is going to give benefit in process, operations and all that for years. आप उसको कैपिटल खर्चा मानोगे. नॉन कैश एक्सपेंस, इकोनॉमिक डेप्रिसिएशन डिडक्ट, और यू कैन डू नेट एडजस्टमेंट. प्रोविजंस, इफ देयर इज इंक्रीज देन ऐड, डिक्रीज, डिडक्ट. नॉन कैश. एमोटाइजेशन, एडवर्टाइजमेंट, ये जो एडवर्टाइजमेंट वगैरह इसको राइट ऑफ तो करेंगे ना. 4 साल का है तो 4 साल में तो हर साल का राइट ऑफ. इंटायर एक्सपेंडिचर एडेड, राइट ऑफ. टैक्स पेड, इंटरेस्ट ऑन टैक्स रिलीफ डिडक्टेड, उसका बेनिफिट नहीं लेना है. इट इज अ प्रेजेंटेशन, यू कैन प्रेजेंट इन सम अदर वे. कैपिटल इंप्लॉयड कैलकुलेशन. कैपिटल इंप्लॉयड, रिमेंबर बिगिनिंग ऑफ द ईयर. अगर ड्यूरिंग द ईयर हमने R&D वगैरह खर्चा किया है, दैट विल नॉट बी एडेड इन द कैपिटल इंप्लॉयड, because during the year expenditure will give benefit from next year onwards. You always calculate in RI, residual income, here in EVA, capital employed at the beginning of the year. तो during the year जो भी आपने कुछ खर्चा फर्चा किया है उसको कैपिटल इंप्लॉयड में नहीं जोड़ना है. There is a big confusion in the student, किसी को जोड़ते हैं किसी को नहीं जोड़ते हैं. ध्यान देंगे तो गलती नहीं होएगा. Adjust economic depreciation value, replacement value of assets, add back value of provisions. Add back value of provisions means जो भी आपका provisions non cash item है, they are not a part of liability. Non cash expense part of capital employed and net book value of R&D, employee and all that. ये चीज क्वेश्चंस के ऊपर बहुत डिपेंड करता है, लेकिन क्वेश्चन कोई 10-15 नहीं करना है. 2-3 क्वेश्चन मन से एक एक चीज पे ध्यान देते हुए, अगर कुछ गलती हुआ भी उसको जब समझ गए उसके ऊपर नोट्स बनाकर जब आप 2-3 क्वेश्चन ठीक करेंगे कोई गलती होएगा ही नहीं. इट विल नॉट बी पॉसिबल. समवेयर मे बी मिस्टेक, लैंग्वेज ठीक नहीं है, वो मेरे से भी हो सकता है. लैंग्वेज इंटरप्रिटेशन हम लोग गलत कर रहे हैं तो कभी कभी गलती उस कारण होता है, बट आपका कॉन्सेप्चुअल मिस्टेक नहीं होना चाहिए. ओनली ए स्मॉल नंबर ऑफ एडजस्टमेंट्स आर इम्प्टेड इन टिपिकल एग्जाम. कैलकुलेशन विल बी रिलेटिवली स्ट्रेट फॉरवर्ड. वो लोग बोलते हैं एग्जाम में कैलकुलेशन आता है, ज्यादा झोल झाल नहीं होता है. The focus of the requirement will be on applying EVA and discussing the context of EVA. WACC निकालने के लिए normal weight of equity, weight of debt into cost of each source of finance. Normally इस एग्जाम में वो लोग cost वगैरह निकालने नहीं देते because that is focus of AFM. Advantage, that is evaluation. Whenever the question is asking evaluate the EVA as a performance measure, इनमें से पॉइंट टेक्निकल याद नहीं करना है लेकिन इनको इनकॉर्पोरेट करके थ्योरी लिखना होगा. मेजर्स ऑफ परफॉर्मेंस डायरेक्टली लिंक्ड टू शेयर होल्डर्स वेल्थ. दिस इज अ मेजर विच इज डायरेक्टली कोरिलेटेड विद शेयर होल्डर्स वेल्थ मैक्सिमाइजेशन. हायर द ईवीए, हायर द वेल्थ ऑफ द शेयर होल्डर. क्लोजर टू कैश फ्लोस टू अवॉइड द डिस्टॉर्शंस ऑफ अकाउंटिंग प्रॉफिट, अकाउंटिंग मेजर्स. Using economic depreciation, replacement value of non-current asset, it is less attractive for divisional managers to delay replacing. Because in case of ROI, RI, managers लोग asset पुराना रखना चाहते हैं, but EVA निकालने से वो लोग ऐसा नहीं करेंगे because we are giving them importance based on current value. Can capital, long-term value-adding expenditures, employee training, R&D and everything, makes divisional managers more aware relating to the cost of the funds and easy decision rules. But the problems, numerous adjustments, no rule for adjustments. Its complexity may be poorly understood. अब मान लीजिए कोई क्लास में ही मान लीजिए हम लोग बहस कर रहे हैं, कोई चीज प्लस होगा लेकिन माइनस में बोल रहा हूं, नहीं समझ में आ रहा, इंप्लॉय को भी नहीं समझ में आता, प्रॉब्लम होती है कम्युनिकेट करने में, समझाने में. सम ऑफ द एडजस्टमेंट्स रिक्वायर्ड, फॉर एग्जांपल इकोनॉमिक वैल्यू, रिप्लेसमेंट वैल्यू, मैं बोल रहा हूं 4 करोड़ है, कोई बोलेगा 3.5 है, कोई बोलेगा 4. इसका कोई फार्मूला नहीं है भाई. एब्सोल्यूट फिगर्स डज नॉट फैसिलिटेट कंपैरिजन. अगर 2 डिवीजन का आप ईवीए निकाले, दोनों एब्सोल्यूट फिगर है, छोटा है बड़ा है, कैसे कंपेयर करोगे? द प्रॉब्लम ऑफ आरआई इज द प्रॉब्लम ऑफ ईवीए. द डब्ल्यूएसीसी कैलकुलेशन इज फॉर द कंपनी एज अ होल, नॉट फॉर द डिवीजन. इन्वॉल्व्स मेनी assumptions and it may change over time. WACC calculation is subjective. कोई फिक्स्ड रूल नहीं है, based on the historical data, but the shareholders are mainly concerned with the future outcome. This is also the past, and we need to talk about future, not about past. If we go here,
They are saying here, STEM Stewart argues that this is not a question, just that on the adjustments which are doing plus minus, they are giving more logic. In accordance with the financial reporting principles, do not reflect the economic value generated by the company and so need adjusting. There are three main reasons for these adjustments: to convert from actual to cash accounting. First reason, EVA is better because it is focusing on cash flow, not on accounting measures. Spending on marketing building, items such as R&D, staff training, advertising should be capitalized to the extent that they have not been in the financial statements. Stern Stewart believes that financial reporting standards are too strict in this regard and discourage managers from investing in the items. बिकॉज अगर आपका फाइनेंशियल स्टेटमेंट खराब हो रहा है, नया एसेट्स ये सब खरीदने से, ट्रेनिंग देने से आप तो करोगे नहीं, बट उसका जो फायदा है वो तो दिख रहा नहीं है. तो एक अकाउंटिंग तो उसको बोलता राइट ऑफ करना है, बट ईवीए बोलता है नहीं, राइट ऑफ नहीं करना है. अनयूजुअल आइटम्स ऑफ प्रॉफिट और एक्सपेंडिचर शुड बी इग्नोर्ड. अगर कोई भी अनयूजुअल ऑपरेटिंग इनकम निकाल रहे, अनयूजुअल नहीं ले रहे, this can result in 160. Here it is written 160, there I've written 100 plus. Being necessary adjustment in calculating no PAT. The APM examiner will test only the most common adjustments, which are expenditure on promotional activities, R&D and employee training should be capitalized where they generate long-term benefit. उनको खर्चा नहीं मानना है, उनको capital employed मानना है. Marketing activities for long-term generate future value for the business, so are added back to profit and should also be added to capital employed in the year in which the expense were incurred. This also means any prior year expenditure is also added in the capital employed. अब बात समझिएगा. Capital employed, suppose we are doing in exam EVA calculation for 2022. In 2022 we have done some R&D or anything, तो हम 2022 का प्रॉफिट में ऐड करेंगे, ऑपरेटिंग प्रॉफिट में, बिकॉज हमने उसको खर्चा दिखाया था. लेकिन हम कैपिटल इंप्लॉयड में ऐड नहीं करेंगे, बिकॉज दैट वी हैव इनकर्ड इन 2022. कैपिटल इंप्लॉयड में कौन सा ऐड करेंगे? जो हमने 2021 में खर्चा किया था, बिकॉज दैट विल बिकम ओपनिंग कैपिटल इंप्लॉयड फॉर 2022 एंड दैट विल बी गिविंग इनकम इन 2022. और प्रॉफिट में क्या लेस करेंगे? जो लास्ट ईयर हमने खर्चा किया था उसको धीरे धीरे तो राइट ऑफ किया जाएगा. एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर इज गोइंग टू गिव बेनिफिट फॉर 4 years. तो लास्ट ईयर जो खर्चा किया था उसका 1/4 हम करंट ईयर राइट ऑफ करेंगे, यानी कि प्रॉफिट में करंट ईयर का खर्चा ऐड करेंगे, प्रॉफिट में लास्ट ईयर का खर्चा का एमोटाइजेशन लेस करेंगे, कैपिटल इंप्लॉयड में लास्ट ईयर का खर्चा ऐड करेंगे. इस साल का खर्चा कुछ नहीं करेंगे. प्लीज अंडरस्टैंड, when the language are given you need to be crystal clear what need to be add or deduct, because capital employed at the beginning, profit for the year, expenditure on promotional activities, R&D, employee training should be capitalized when they generate long-term benefit. Marketing activities for long-term generate future value for business, so are added back to profit and should also be added to capital employed in the year in which the expense were incurred. This also means any prior expenditure added back to the capital employed. करंट ईयर का नहीं, प्रीवियस ईयर का आपको कैपिटल इंप्लॉयड में ऐड करना है. करंट ईयर का नेक्स्ट ईयर ऐड होगा, बिकॉज इट विल बी ट्रीटेड एज ओपनिंग कैपिटल इंप्लॉयड. द अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन चार्ज इज रिप्लेस्ड विद द इकोनॉमिक डेप्रिसिएशन. इकोनॉमिक डेप्रिसिएशन रिफ्लेक्ट्स द टू चार्ज इन द वैल्यू ऑफ एसेट्स ड्यूरिंग द ईयर. अनलाइक अकाउंटिंग, इफ नो डिटेल इज गिवन यू एज्यूम क्वेश्चन में नहीं है अकाउंटिंग इकोनॉमिक है, आप क्या करोगे? Items such as provisions, allowance for doubtful debts, deferred tax, allowance for inventory, anything added back in capital employed, वो liability नहीं है. These are considered to represent over prudence on the part of financial statements. हम लोग prudency बहुत ज्यादा apply करते हैं accounts में, and this underestimates the true value of the capital employed. Any expense or income recognized in the income statement in respect of movement in such items should also be removed from no PAT. Any expenses or income recognized in the income statement in respect of movement in such items should also be removed from no PAT. Provision से last year current year change हुआ, बढ़ गया घट गया, that is increase or decrease adjusted in profit you need to nullify. प्रॉफिट में उल्टा करना है, और प्रोविजंस का जो बैलेंस है वो कैपिटल एम्प्लॉयड के साथ एडजस्ट करना है. कौन सा बैलेंस? ओपनिंग प्रोविजन बैलेंस, नॉट क्लोजिंग, बिकॉज कैपिटल एम्प्लॉयड एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर.
Non-cash expenses should be added back capital employed. Non-cash expenses are correctly added back to profit, as such costs are treated as unacceptable accounting adjustments. From cash view, कोई भी non-cash खर्चा है. The tax charge, the tax cost should be amount paid adjusted to lost tax on interest and not the adjusted amount of tax. अगर आपका जो भी ये सब है deferred tax वगैरह, उसको tax नहीं मानना है, पेमेंट नहीं मानना है, no further adjustments are made in respect of NOPAT other than this, which is written. But then while doing the problems, केवल ये नहीं सोचना मेरा तो राइट हो गया, हाँ सही है. क्या आपको बात समझ में आई? 10 सम नहीं करना है, 2-3 ठो मन से करने से रॉन्ग कभी होएगा ही नहीं जीवन में. अगर लैंग्वेज में मिस्टेक है तो मेरे से भी रॉन्ग होगा, दैट इज अदर थिंग, कंफ्यूजिंग लैंग्वेज. बट अगर लैंग्वेज क्रिस्टल क्लियर है, रॉन्ग नहीं होएगा. डिवीजन बी हैज अ रिपोर्टेड ऑपरेटिंग प्रॉफिट ऑफ 8.4 million, which includes a charge of 2 million for the full cost of developing and launching a new product. And this is expected to generate profit for 4 years. Reported operating profit 8.4 million EBIT, which includes 2 million charge for full cost of developing and launching a new product. जो reporting profit में 2 million development and launching of new product less किया गया है, but that is expected to generate profit for 4 years. लेकिन ये 2 million से जो प्रोडक्ट वगैरह बनेगा उसमें हमें फायदा 4 साल में होएगा. The company has an after-tax weighted average cost of capital 10% directly given. The operating book value of the division's assets at the beginning of the year is 60 million. Beginning of the year, operating assets of the division is 60 million, and the replacement cost has been estimated at 75 million. Assume the tax charge is 0. टैक्स है ही नहीं कंपनी में, मे बी दैट इज इन अ फ्री ट्रेड जोन, देयर इज नो टैक्सेस एंड ऑल दैट, लेना ही नहीं है. कैलकुलेट डिविजन्स ईवीए. तो जब हम लोग कैलकुलेशन करेंगे, हम लोग 2 million को खर्चा नहीं मान सकते, बिकॉज इट इज गोइंग टू गिव बेनिफिट इन 4 years. सो 8.4 million में 2 million ऐड करेंगे, बट दैट इज गोइंग टू गिव बेनिफिट इन 4 years. तो एवरी ईयर इट विल बी एमोटाइजेशन ऑफ 0.5 million 2/4. सो करंट ईयर में खर्चा हुआ है तो करंट ईयर में 0.5 million खर्चा दिखाना है, यानी कि 8.4 + 2 - 0.5 इज योर इनकम आफ्टर डूइंग द फर्स्ट पैराग्राफ एडजस्टमेंट. देयर इज नो टैक्सेस. अगर टैक्सेस होता तो किस पे निकालते? 8.4 पे निकालते कि 2 और 0.5 का एडजस्टमेंट करने के बाद? जस्ट गिव मी 1 second, आई एम कमिंग.
they have written that no further adjustments are made in respect of tax on the other item adjusted for during the calculation of no PAT. आपको टैक्स का एडजस्टमेंट्स में केवल प्रोविजंस फॉर टैक्स, डेफर्ड टैक्स, टैक्स बेनिफिट ऑन इंटरेस्ट नहीं लेना है, लेकिन इसके अलावा जो ऊपर आप प्लस माइनस कर रहे हो, इकोनॉमिक डेप्रिसिएशन, दिस दैट, नो फर्दर एडजस्टमेंट्स आर मेड इन रेस्पेक्ट ऑफ टैक्स ऑन द अदर आइटम्स adjusted for during the calculation of no PAT. मतलब even though here tax is not there, but मान लीजिए 30% tax would have been there, I would not be calculating tax 8.4 plus 2 minus 0.5 उसके ऊपर, I will calculate tax on 8.4 only. इन सब चीजों को क्यों बोलेगा? Why? हम लोग ऐसा बोलना चाह रहे हैं कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट इज नॉट कंसर्न्ड विथ व्हाट यू आर डूइंग. इनकम टैक्स के लिए ये 8.4 ही इनकम है, ये 2 मिलियन इनकम टैक्स के लिए खर्चा है, तो इनकम टैक्स विल बी पेड ऑन कैश, इन कैश ऑन 8.4 ओनली. आप इंप्लॉय ट्रेनिंग ये सब को खर्चा नहीं मान रहे वगैरह, वो आपकी मर्जी है. गवर्नमेंट तो टैक्स आपको 8.4 पे ही लेगा ना, तो जो देना है वही तो लिखेंगे. और इंटरेस्ट का टैक्स बेनिफिट क्यों ऐड कर रहे हैं? टैक्स बेनिफिट ऑफ इंटरेस्ट बिकॉज वी आर सेइंग द ओनर्स आर नॉट ओनली शेयर होल्डर्स. जिन लोगों ने भी नॉन टर्म फंड्स लगाया, दे ऑल आर ओनर्स. सो फॉर दैट रीजन इफ द टैक्स वुड हैव बीन देयर, you would be calculating on 30% only. And now capital employed, they have given opening capital employed 60, but they have said replacement value is 75. So it is basically 60 plus 15, or you can take straight away 75. But 75 में कोई adjustment करना है क्या? In 75 for calculating opening capital employed, do we need to do any adjustment? This 2 million minus 0.5 million, 1.5 million. When next year we will calculate, then this 1.5 million will be added to the capital employed. But current year nahi. Because current year ka benefit we will be getting from next year, and this is opening capital employed. आप नॉर्मली सोचेंगे कहीं पर प्लस करते कहीं पर नहीं करते, बिकॉज हम समझ नहीं रहे हैं. अगर हम समझेंगे कि दिस इज ओपनिंग कैपिटल एम्प्लॉयड, दिस इज ड्यूरिंग द ईयर एडजस्टमेंट, दिस इज गोइंग टू अफेक्ट क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड. क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड बढ़ेगा, लेकिन वो क्लोजिंग तो नेक्स्ट ईयर के लिए ओपनिंग बनेगा ना. So this 1.5 will be adjusted in the next year opening capital employed. So your 75 is the opening capital employed, 10%, 7.5 should be your earnings, but your earning is 8.4 plus 2 minus 0.5, which will be coming 10.4 minus 0.5, 9.9. So 9.9 minus 7.5 will be your EVA. 9.9 minus 7.5 will be your EVA. हम लोग प्लस माइनस क्यों नहीं कर रहे, क्या नहीं कर रहे, एक एक चीज पे ध्यान देना है. जस्ट 2-3 प्रॉब्लम्स विथ फुल फोकस. एक तो ईवीए गलती नहीं होएगा, एक ईवीए कैलकुलेशन विल नॉट बी डूइंग मिस्टेक. एनी क्वेश्चन इन दिस? मूविंग फॉरवर्ड, bigger question. Even though this includes part of other area also which we will discuss, but इसमें यहां पर EVA को बहुत डिटेल में समझना जरूरी है. Eco Homes is an innovative company that was born from the demand of customers for high quality. Eco Homes is an innovative company that was born from the demand of customers for high quality, bespoke homes at affordable prices. I think this type of question we did in other topic also, don't remember. High quality, bespoke homes at affordable prices. The company is based in the country of G-Land and is divided into 3 geographical areas, north, east and west. The company's mission is to make environmentally sound homes available to the general public in a way that ensures accessibility and quality of the product. Eco Homes is an off-site
There is a advertisement I am hearing that somebody completed eco home in 40 days. Fantastic home, सब जगह ऐड में आ रहा है. Which is that company I have not focused. 40 दिन में eco home ready. Which is you can say foreign country culture incorporated in India also. कि 40 दिन में आपके घर में रहने के लिए eco homes develop कर रहे हैं. 40 days. Eco home is an off-site timber frame manufacturer. Eco home is an off-site timber frame manufacturer producing the cell of the house in their state-of-the-art factory using sustainable sources. Certified timber. अभी 2-3 टर्म पहले इन सीमा में the case study was on a company like Eco Home. कि the timber they develop and then wherever the house need to be structured, they take the timber और वो फटाफट बना देते हैं. It's you can see that type of house development. It is very developed in European country. इंडिया में भी आ गया अब तो. The controlled environment assures customers of the best quality available. Eco Homes prides itself on being a one-stop shop, providing the customers with a full design and build and a fixed price quotation, which includes all the Eco Homes prides itself on being a one-stop shop, providing the customers with a full design and build and a fixed price quotation, which includes all the planning, demolition, groundworks, house build and landscaping. मतलब कंपनी डिजाइनिंग प्लानिंग सब चीज करके देता है and they vouch for themselves that they are the one-stop solution for them. Eco Homes is starting to lose market share and its key goal of being the #1 bespoke house builder in G-Land is starting to slip away. Eco Home is starting to lose market share. Bad. And its key goal of being the #1 bespoke house builder in G-Land is starting to slip away. The fall in market share is primarily due to the entry of 2 new competitors into the market. The first of these, Dream Homes, provides cutting-edge house design and premium quality builds, but at prices to match. The second new competitor, Bespoke, हमारे जैसे Homes for All, undercut Eco Homes on price, but is not able to provide the same quality design, build और finish. मतलब एक हाई क्वालिटी वाला, एक थोड़ा खराब वाला, हम लोगों से दोनों एग्जैक्ट कंपटीशन नहीं कर रहे हैं, बट अपॉर्चुनिटी तो आ गई उनके लिए. Eco Home has just revealed a profit warning for the first quarter of the current year 2012. Company has already said that in the coming quarter profit will be lower. This has caused the board to reconsider its position and to take action to address the changed environment. Some cost cutting has already begun, such as the commencement of voluntary redundancy program and the introduction of a pay freeze for all employees. Employee लोग को छोड़ना, पैसा ज़्यादा नहीं देना, pay freeze for all the employees. However, the board recognizes that it will need to take more radical steps to fully address the issues it is facing, competition facing. So Eco Homes has traditionally used EPS and ROCE, accounting measures, earnings per share, return on capital employed, to quantify shareholder value. The CEO understands that a number of Eco Homes rivals are now using a value-based management approach. We have not studied value-based management, we will. Approach to performance management, and they think that it may be a useful development for Eco Homes given the tough competitive environment. Financial data for Eco Homes for the last 2 years is provided in Appendix 1. The CEO has come to you to advise him on the implications of switch to value-based management. तो आपको फाइनेंशियल डेटा 2 साल का दिया हुआ है, कुछ पॉइंट्स दिया हुआ है. रिक्वायरमेंट क्या है? Write a report to the CEO of Eco Homes addressing the following. Perform an assessment of Eco Homes using economic value added. Briefly comment on the result of your calculation. Perform an assessment of Eco Homes using economic value added. Briefly comment on the result of your calculations. Perform an assessment of Eco Homes using economic value added. Briefly comment on the results of your calculation, which we have discussed we will be doing. Evaluate the use of value-based management approach to performance management, which we have not discussed. We will discuss first of all. So आपको EVA निकालना है
और कंपनी का परफॉर्मेंस ईवीए बेसिस बताना है. परफॉर्म एन असेसमेंट ऑफ इकोनॉमिक इको होम्स यूजिंग इकोनॉमिक वैल्यू एडेड. ब्रीफली कमेंट ऑन द रिजल्ट्स ऑफ द कैलकुलेशन. जो आप निकालेंगे उसका कैलकुलेशन को एक्सप्लेन भी करना है, कमेंट भी करना है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट डेटा दे हैव गिवन. They have given 2011, 2010 operating profit, interest, profit before tax, tax 25%. अगर मान लीजिए कोई एडजस्टमेंट नहीं है, suppose there is no adjustment, then can anybody say what will be the no PAT in this example for both the years? If I will say there are no adjustment below, then what will be the no PAT figure in this example? What will be the no PAT figure in this example? सुब्रत रॉन्ग हो जा रहा है यार. मैंने बोला था कि हम लोग टैक्स निकालेंगे इंटरेस्ट लेस करे बगैर. 130 इंटू 25%, 110 इंटू 25%. या दूसरा तरीका यह है, जो इंटरेस्ट है उस इंटरेस्ट का आफ्टर टैक्स पोर्शन 20 इंटू 75% ऐड कर दीजिए. या तीसरा तरीका है, थर्ड तरीका है, पूरा का पूरा 20 ऐड कर दीजिए और 20 का 25% लेस कर दीजिए. जो आपकी मर्जी है सर. सबसे बेस्ट तरीका है दिस फिगर इंटू 25% लेस बैलेंस. आई सेड दैट कि इफ 100, फॉरगेट अबाउट दिस, डोंट सी दिस. आई सेड इफ 100 इज EBIT, टैक्स 30%, 30. इंटरेस्ट से कोई मतलब नहीं है. इंटरेस्ट इज नॉट एन एक्सपेंस. वी डोंट कंसिडर द टैक्स बेनिफिट ऑफ इंटरेस्ट. सो या तो आप 130 से चालू करके 25% लेस करिए, या 82.5 से इंटरेस्ट आफ्टर टैक्स ऐड करिए, या इंटरेस्ट पूरा ऐड करिए और इंटरेस्ट का टैक्स लेस करिए. तीन में से चौथा तरीका और नहीं है सर. समझना होगा. वी नीड टू डिडक्ट टैक्स ऑन EBIT. इंटरेस्ट टैक्स बेनिफिट वी डोंट कंसिडर. सुब्रत, net operating profit after tax. Operating profit after tax. After doing this question, I will be writing my own notes in the slides, which I feel that important to understand, have a logic, so that questions will not go wrong. I am not naming. There was a famous teacher in India on CA, and there is a question in CA exams about EVA. अब ईवीए का सॉल्यूशन इंस्टीट्यूट का अलग तरह से किया हुआ था. एंड ही वॉज आस्किंग, बिकॉज एज अ फ्रेंड और एज अ जनरल, कि सर मेरे को ऐसा लग रहा है कि ऐसा होना चाहिए ना. एंड देयर वॉज अ बिग डिबेट गोइंग ऑन कि ईवीए में क्या होना चाहिए. क्वेश्चन ये आता है कि हम लोग सीए इंस्टीट्यूट को बोलेंगे कि तुम फालतू है, ऐसे करता है. अरे भाई, ईवीए का कोई नियम कानून थोड़ी ना बनाया हुआ है, कोई लॉ थोड़ी ना है कि ईवीए को ऐसे निकालना है. There is no accounting, IFRS, Ind AS, US GAAP, company law, anything. तो आप अगर कैसे भी करेंगे, कोई आपको क्वेश्चन नहीं कर रहा है, रॉन्ग नहीं है वो. लेकिन लॉजिक ये समझाया जा रहा है कि ईवीए में इंटरेस्ट इज नॉट एन एक्सपेंस. ऑपरेटिंग प्रॉफिट, टैक्स ऑन ऑपरेटिंग प्रॉफिट. आपको इंटरेस्ट का टैक्स बेनिफिट सोचना नहीं है, बिकॉज पैसे कहां से आ रहे हैं इससे मतलब नहीं है. So net operating profit, forget about interest. Consider operating profit is your income. लोन होता ही नहीं है, इंटरेस्ट होता ही नहीं है, टैक्स उसी पे निकालना है. The allowance for doubtful debts was 6 million at 1st January 2020. 5 million. You can consider those who have given CA exam, the one of the famous teacher in India. Okay. The allowance for doubtful debts was 6 million. At 1st January 2020, 5 million at 31st December 2010, and 7 million at 31st December 2011. The allowance for doubtful debt 6 million on 1st January 2010, then 5 million on December 20, and then 7 million on 31st December 21. We need to adjust from the profit, whatever the provision affect, and in the capital employed, provision will not be considered as a liability. तो पहले हम लोग प्रॉफिट पढ़ चुके, तो प्रॉफिट में दोनों साल क्या एडजस्टमेंट करना है,
what is to be adjusted in the profit of both the years to nullify the effect of provisions from the income. Add back how much? Which year? What amount? Add back how much? Which year? What amount? थोड़ा सा अकाउंटिंग में और ज्यादा जाना होगा. नहीं सर. The balance of provisions for doubtful debts in the balance sheet is in the PL account only for first year. But if the business is running for many years, then they are saying that the doubtful debts balance opening is 6 million and then the closing is 5 million. Opening is 6 million and then the closing is 5 million. That means during the year the provisions 1 million has reduced. Reduced मतलब आपने 2010 में पीएल अकाउंट में 1 मिलियन प्रोविजन गेन दिखाया है, लेकिन वो गेन आपको पैसा फैसा कुछ नहीं मिला, वो तो ऐसे ही प्रोविजन है. तो आपको फर्स्ट ईयर का इनकम में 1 मिलियन लेस करना है और सेकेंड ईयर 5 मिलियन से 7 मिलियन 2 मिलियन आपका प्रोविजन खर्चा बढ़ गया, तो सेकेंड ईयर का इनकम में 2 मिलियन ऐड करना है. करंट ईयर इनकम 2 मिलियन ऐड, लास्ट ईयर इनकम 1 मिलियन लेस. The effect of provision in the profit, because that is not a cash flow, that is a non-cash expenditure or income whatever. और जब कैपिटल एम्प्लॉयड निकालेंगे, ओपनिंग कैपिटल एम्प्लॉयड फॉर 2010, ओपनिंग कैपिटल एम्प्लॉयड इज 1st January 2010 फिगर. 1st January 2010 इज 6 मिलियन. सो आपको कैपिटल एम्प्लॉयड में 6 मिलियन 1st January 2010 में ऐड करना है, which will be the capital employed basis for 2010. और 2011 के लिए opening is 1st January 2011. 1st January 2011 means December 2020. 5 million. आपको opening capital employed में 5 million add करना है. For last year opening capital employed 6 million add. For current year opening capital employed 5 million add, because that is the figure written in the balance sheet, but that is not a liability, so that will not reduce your capital employed, that you need to add. ये 7 million add होगा next year for 2012. वहां पर opening capital employed 7 million add. So these figures will be adjusted in profit and these figures will be adjusted in capital employed both. Are we getting? आगे बढ़ रहे हैं. रिसर्च एंड डेवलपमेंट कॉस्ट ऑफ 10 मिलियन. बोलिए सुब्रत. Sir, this doubtful debt, already we have considered that the additional income of like 6 to 5 and 5 to 7 in the both the years, and tax impact also we have considered that was. Just now I said na. Just now you said, yeah, you understood, sir. We said that कि other than this provisions for tax, whatever adjustments you are doing, they will not subject to tax adjustment. I said logic because income tax department does not consider advertisement is not an expense. They will consider that as an expense only. So we are saying that the tax payment is cash payment, cash tax payment. And you need to pay tax to government on your income, which is accounting income after the provision. Now you will say that, sir, India or anywhere, मेरे को भी पता है कि provisions के ऊपर तो government income tax में खर्चा allow करती नहीं है. Because if it is a bad debt, then only it is allowed. But they are saying that any adjustment which you are doing in the income, the tax will not be affected by that. No. First of all, this portion is separate and this portion is separate.
This portion, so we said that the best way is that there is no loan, there is no shareholder separate one. So the income is this, and we will deduct 25% out of this. But if you say that ki I will start from here and I will add 20 and 18, wo bhi chalega, but that is not the final answer. Because of 20 and 18 your tax is lower and you need to deduct tax on 20 and 18 separately. आप अगर 82 और 69 से चालू करेगा तो आपको 20 और 18 ऐड करना है और 20 और 18 का टैक्स लेस करना है. लेकिन मैं अगर होऊंगा तो मैं एग्जाम में यहां से चालू करूंगा और मैं सीधा सीधी 25% उसी का लेस कर दूंगा. दोनों का फिगर सेम आएगा. बिकॉज मेरे को इंटरेस्ट टैक्स ये सब सोचने का जरूरत नहीं है. लेकिन जो आप एडजस्टमेंट प्रॉफिट में और जो सब कर रहे हैं, एडवर्टाइजमेंट, R&D, नॉन कैश, दिस दैट, they will not change your tax payments. They will not change your tax adjustment. Reason being that we are saying that in EVA, we are deducting tax cash payment. So because of these provisions, there will not be any changes in the tax payments. So for that reason, they will be just adjusted plus minus, but they will not change 25% calculation. Tax adjustment will not be arise for this. Getting Subrat and others also. आप सोचिए, आप एक ही सम को ध्यान से करेगा, सारा दायां बायां सोचेगा, तो दूसरा सम करने के टाइम पे राइट होएगा. राइट होगा, कॉन्फिडेंस आएगा, आपको समझ में आएगा मेरे को चीज समझ में आ गई. एक और करेंगे, फिर राइट होएगा, तो आपको फीलिंग आ जाएगी अंदर से मेरे को समझ में आ गया, हो गया, और मेरे को नहीं करना है. तो वंस वी गिव टाइम ऑन अंडरस्टैंडिंग द कॉन्सेप्ट्स, देन इन दैट केस वी नीड टू स्टडी लेस. बट जब हम लोग शॉर्टकट मार रहे हैं, प्लस माइनस याद कर रहे हैं, लॉजिक नहीं लगा रहे हैं, तो हम 10 सम और कर लेंगे तो भी दुखी रहेंगे. बार बार गलती हो रहा है, क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है. ओके, सो ट्राई टू फोकस, नो प्रॉब्लम. रिसर्च एंड डेवलपमेंट कॉस्ट ऑफ $10 million were incurred during each of the year 2010 and 2011 on a new project. Research and development cost of 10 million were incurred during each of the year 2010 and 11 on a new project. Project Light, which is part completed. This is relating to a project Light, which is not yet completed. These costs were expensed in the income statement. तो पहले तो R&D है, मे बी एज पर IS 38 रिसर्च इज नॉट ट्रीटेड एज एन एसेट, तो हमने बुक्स में राइट ऑफ कर दिया. लेकिन EVA में वी आर सेइंग वी आर गोइंग टू गेट बेनिफिट, सो इट विल नॉट बी ट्रीटेड एज एन एक्सपेंस. दोनों साल, सो दोनों साल 10 ऐड. एनी अदर एडजस्टमेंट इन द प्रॉफिट फॉर दिस? दीज कॉस्ट वे आर एक्सपेंस्ड इन द इनकम स्टेटमेंट. प्रॉफिट में और कुछ करना है 10 के अलावा? वाई आई एम सेइंग दिस, जो प्रीवियस क्वेश्चन है विच वॉज शॉर्ट, उसमें हम लोगों को बोला, वही इसीलिए बोल रहा हूं मैं जनकृत यहां पर हम लोग को बोला 2 million फुल कॉस्ट ऑफ डेवलपिंग एंड लॉन्चिंग अ न्यू प्रोडक्ट, एक्सपेक्टेड टू जनरेट प्रॉफिट फॉर 4 years. तो यहां पर हम लोग 2 million ऐड किए और 0.5 million 2/4 5 million लेस किए. तो फिर यहां भी तो होना चाहिए ऐसा ही कि 10 million हमने ऐड किया, लेकिन इसका एमोर्टाइजेशन हम लोग लेस करेंगे. कितना लेस करेंगे? हाउ मच एमोर्टाइजेशन यू विल डिडक्ट? देयर आर 2 प्रॉब्लम हियर. One is there it was written 4 years, so you can get the value divided by 4 every year. Second, not mentioned किस लिए है? यहां क्या लिखा हुआ है? यहां क्या लिखा हुआ है? What is written? In the previous question it was written it is started giving you income 4 years, but here it is said that it is still part completed. तो जब कोई चीज कंप्लीट ही नहीं हुई तो आपको इनकम कहां से मिलेंगी? तो एमोर्टाइजेशन अकाउंट्स में कैसे होगा मतलब नहीं है.
लेकिन ईवीए में अमोर्टाइजेशन तब होगा जब इनकम स्टार्ट्स. सिंस द इनकम नॉट येट स्टार्टेड, सो अमोर्टाइजेशन विल नॉट अराइज इन द करंट ईयर. अमोर्टाइजेशन विल नॉट अराइज इन द करंट ईयर. तो यहां देने का जरूरत नहीं था कि नंबर ऑफ ईयर्स. एक एक लैंग्वेज पे ध्यान दीजिए. हर एक क्वेश्चन को जब कैलकुलेशन टाइप एग्जाम में बहुत आता है और 14 नंबर में मे बी 7 to 8 मार्क्स ऑन ईवीए कैलकुलेशन, तो एग्जाम में मेरे को तो सोचना है 7 out of 7, एक नंबर भी मैं नहीं छोड़ूंगा. तब तो मजा आएगा ना यार. और टाइम भी नहीं देना है मेरे को. ऐसा नहीं कि टाइम बर्बाद करना एग्जाम में. फटाफट प्लस माइनस चुम बड़ा बस. If the 7 marks each 7 into 1.4, 1.5, 10 minutes, I should solve this in 5 minutes. Save my time. Use in theory, use other places. ये लॉजिक से एग्जाम में जाना है. इसको कैपिटल इंप्लॉयड में एडजस्ट करना है क्या? डू वी नीड टू एडजस्ट इट इन कैपिटल इंप्लॉयड ऑल्सो? डू वी नीड टू एडजस्ट? सुब्रत, if you are not considering something as an expenditure revenue, then it is capital. एक तरह से सोचेंगे खर्चा नहीं है, दूसरा बोलेंगे एसेट, तो फिर काहे को एडजस्ट कर रहे हैं यार? Either you say it is an expense deducted, or you say it is an asset, not an expense, so added in asset. दो में से एक बात सोचेंगे. सर दोनों कैसे सोचेंगे यार? Why you think? Think क्या है? मैं लॉजिक तो दे रहा हूं. जब हम लोग बोल रहे हैं कि अकाउंट्स में ये खर्चा है, लेकिन ईवीए में ये खर्चा नहीं है, तो एसेट है. तो कैपिटल इंप्लॉयड तो एसेट ही होता है. तो थिंक क्यों है? वाई नॉट कन्फर्मेंस इज कमिंग दैट इट इज टू बी एडेड. ये फीलिंग क्यों नहीं आ रहा है कि ऐड होगा? सुब्रत तो बोल रहे हैं नहीं होएगा. जनकृत बोल रहे हैं आई थिंक. थिंक क्यों है? कॉन्फिडेंस क्यों नहीं है? कौन सा ऐड होगा? ओपनिंग कैपिटल इंप्लॉयड. वी आर सेइंग दैट नॉट अ क्वेश्चन ऑफ पार्ट कंप्लीशन फॉर एडिंग इन द कैपिटल. पार्ट कंप्लीशन एमोर्टाइजेशन के लिए दिया है. बट वी आर सेइंग दैट it is not an expense. That means it is an asset. Asset will be added in the capital employed, not because of this language. Asset is an asset, capital employed. लेकिन opening capital employed, 2010 beginning, 2011 beginning. 2010 beginning you don't add anything. Why? No. 2000, yes, nothing add. Why? Because 2010 beginning will be 2 years back. लेकिन 2011 beginning last year 10 will be added. 2011 में जो 10 लगा है वो 2012 में ऐड होगा. For calculating capital employed, we need to take capital employed at the beginning. Beginning for 2010 is 2010 का beginning, where this expenditure should be in 2009. It was not there. But in 2011 beginning means 2010 का expenditure will be added. So only in 11 you need to add 10, but in 2010 capital employed you don't do anything, because you need to take opening capital employed and not the closing. And whenever an expenditure is not an expense, that is capital employed assets, तो आपको asset में तो जोड़ना ही पड़ेगा ना यार. एक बात सोचिए जनकृत, जब पिछली बार एग्जाम दिए थे ये क्वेश्चन किए होंगे, या मान लीजिए कुणाल किए होंगे, कोई भी किया होएगा यार. लेकिन अभी ये बात समझ में आ रही है, पहले नहीं आई थी. तो एग्जाम में ईवीए सही कैसे होगा? एग्जाम में आया नहीं आया बात नहीं है, कैसे सही होगा? तो कॉन्सेप्ट्स में तो प्रॉब्लम है ना. तो वो प्रॉब्लम अगर ठीक नहीं होगा तो एग्जाम में गड़बड़ी होने का चांसेस रहेगा. सिंपल 50 क्वेश्चन ईवीए का नहीं करना है, 2-3 बस. At 1st January 2010, the company had completed another research project. 1st January 2010, completed another research project, Project Glass. The total expenditure on this project was 30 million, none of which had been capitalized in the financial statement. अकाउंटिंग बेसिस हमने पूरा 30 मिलियन खर्चा दिखाया था.
कैपिटलाइज कुछ नहीं किया। लेकिन कब खर्चा दिखाया था? पहले 2010 के पहले, 1 जनवरी 2010 की बात कर रहे हैं। द प्रोडक्ट डेवलप्ड बाई प्रोजेक्ट क्लास वेंट ऑन सेल ऑन 1 जनवरी 2010 से हमारा सेल इनकम चालू हो गया। द प्रोडक्ट हैज ए 2-year लाइफ साइकिल एंड नो फर्दर सेल्स ऑफ दिस प्रोडक्ट आर एक्सपेक्टेड आफ्टर 31 दिसंबर 2011। 10-11 2 साल में प्रोजेक्ट से जो फायदा होना है हो जाएगा। हमने कोई खर्चा 10 और 11 में तो नहीं दिखाया। वी हैव नॉट सोन एनी एक्सपेंस रिलेटिंग टू दिस बिकॉज वी डिड द एक्सपेंडिचर इन 2009-8 अर्लियर। लेकिन 2010 और 11 में कोई एमोर्टाइजेशन होगा क्या? अकाउंटिंग में तो एमोर्टाइजेशन नहीं किया बिकॉज हम खर्चा पहले ही दिखा चुके। लेकिन ईवीए में तो एमोर्टाइजेशन होगा। 30 million इन बोथ द ईयर्स बिकॉज 2-year बेनिफिट 15-15। तो आपको ईवीए निकालने में 15-15 लेस करना होगा। अब आता है हम लोग ऐड करेंगे कैपिटल इंप्लॉयड में। तो कैपिटल इंप्लॉयड में 2010 बिगिनिंग में 30 ऐड करेंगे और 2011 बिगिनिंग में 15 ऐड करेंगे। काहे को? बिकॉज 2010 बिगिनिंग में द वैल्यू इज 30 बट 1 year 2010 में 15 रिटन ऑफ। So the balance value left for the second year is 15. So आपको कैपिटल इंप्लॉयड लास्ट ईयर में 2010 में 30 ऐड करना है और करंट ईयर में 30 माइनस 15 ऐड करना है। और प्रॉफिट में दोनों साल आपको 15 लेस करना है। प्रॉफिट यू आर डिडक्टिंग एज एन एमोर्टाइजेशन बिकॉज इट इज नॉट एक्सपेंस, इट इज एन एसेट। सो एसेट विल बी एडेड टू द कैपिटल। लास्ट ईयर बिगिनिंग इट वॉज इंटायर 30, but this year beginning it was 30 minus 15. So that will be added to the capital employed. Hello, are we getting? Capital employed at the beginning, profit for the year. Profit for the year considering this as an amortization, capital employed considering this as an asset. But since beginning of the year, for that reason, first year beginning is entire 30 value, second year beginning value is 30 minus 15. सृष्टि, आपने जो एग्जाम दिया एसबीआर का, उसमें एडिशनल परफॉर्मेंस मेजर्स में भी ये आता है। वहां पर क्या रहता है कि प्लस माइनस करके ऑर्गेनाइजेशन ने ये किया है। आप उसके ऊपर कमेंट करिए कि क्या इस तरह से एडिशनल परफॉर्मेंस मेजर्स लॉजिकल है, क्या नहीं है। वो यहां पर क्वेश्चन क्या आ रहा है कि आपको वो कैलकुलेशन करना है जो वहां पर कैलकुलेशन किया रहता है। जो एट एसबीआर के पेपर में कैलकुलेशन करके दिखाता है, जिसके बारे में ये थ्योरी लिखना पड़ता है जो यहां लिखा हुआ है। अभी एपीएम में हम वो थ्योरी लिख रहे हैं, देख रहे हैं, और हमें कैलकुलेशन एडिशनल परफॉर्मेंस मेजर्स करना है बिकॉज परफॉर्मेंस मेजर्स ही चल रहा है। यानी कि दोनों सब्जेक्ट रिलेटेड है। यानी कि जिंदगी में कोई सब्जेक्ट नहीं होता कि एसबीआर है, एएफएम है, एपीएम है। जिंदगी है, उस पर कोई सब्जेक्ट की बात नहीं होती। लेकिन एग्जाम में हम एक सब्जेक्ट के बारे में बात करते हैं, ठीक है ना। सो व्हाट इज योर क्वेश्चन इन एसबीआर? That is an answer here. And in SBR, whatever is answer, that is a question here. Same बात चल रही है। The company incurred non-cash expenses of 0.3 million in both years. The company incurred non-cash expenses of 0.3 million in both years. Non-cash expenses क्या करना है? कैश एक्सपेंसेस नहीं है तो प्रॉफिट में ऐड बैक करना है। और कुछ करना है क्या? वापिस से एक्सपेंस नहीं है तो एसेट है, क्या बोले? कैन वी से एक्सपेंस नहीं है तो एसेट है, तो कैपिटल इंप्लॉयड में 0.3 ऐड करना है। कैन वी से? इसमें मेरे को खुद को कंफ्यूजन हो रहा है कि इन दी अदर केसेस वी आर सेइंग दे आर नॉट रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, दे आर कैपिटल एक्सपेंडिचर। बट अगर यहां वो कैश एक्सपेंडिचर्स नहीं है तो कौन बोला कि वो एसेट है? तो मेरे को तो फीलिंग आ रहा है कि 0.3 ऐड नहीं करना है। बट फिर भी आई विल चेक द आंसर।
द कंपनी इनकर्ड नॉन कैश एक्सपेंस ऑफ 0.3 million इन बोथ द ईयर्स, प्रॉफिट में 0.3 million ऐड करना है, बट वेदर इन कैपिटल इंप्लॉयड वी नीड टू ऐड 0.3. एक बार थ्योरी पढ़ते हैं जो नोट्स में उन्होंने लिखा है. नॉन कैश एक्सपेंसेस शुड बी एडेड टू द प्रॉफिट एंड टू कैपिटल इंप्लॉयड. करना है यार. नॉन कैश एक्सपेंसेस एडेड बैक टू प्रॉफिट एंड एडेड टू कैपिटल इंप्लॉयड. नॉन कैश एक्सपेंसेस आर करेक्टली एडेड बैक टू प्रॉफिट. एज सच कॉस्ट आर ट्रीटेड एज अनएक्सेप्टेबल अकाउंटिंग एडजस्टमेंट्स ऑन अ कैश बिलो. कैपिटल इंप्लॉयड में ऐड करने का लॉजिक क्या है? वाई वी आर एडिंग इन द कैपिटल इंप्लॉयड? वी नीड टू ऐड. दे मस्ट हैव एडेड इन द बैक. एनीबडी कैन गिव लॉजिक. मेरे को फीलिंग आ गया क्या लॉजिक है, बट कोई बोल सकता है क्या लॉजिक है कैपिटल इंप्लॉयड में ऐड करने का? आपका कैपिटल इंप्लॉयड मींस इक्विटी एंड डेट. इक्विटी मींस शेयर कैपिटल, रीटेन्ड अर्निंग, रिजर्व्स, एवरीथिंग. रीटेन्ड अर्निंग आपका कम हो गया बिकॉज ऑफ 0.3, लेकिन जब आप 0.3 को खर्चा नहीं मान रहे हैं तो आपका अर्निंग्स बढ़ गया. अर्निंग्स इज अ पार्ट ऑफ इक्विटी, सो कैपिटल इंप्लॉयड goes up. These are added back because these are asset. But this is added back because this is increasing your retained earnings, or you can say capital employed equity figure. इसीलिए ऐड करना है. तो प्रॉफिट में ऐड करना है बिकॉज कैश बेसिस ईवीए में जाना है, और कैपिटल इंप्लॉयड में ऐड करना है बिकॉज रिटेन्ड अर्निंग्स इनकम नीड टू, विच इज द कैपिटल इंप्लॉयड पार्ट, नीड टू बी एडेड. क्या ये दोनों साल ऐड करना है क्या? अब यहां पर क्वेश्चन में साइलेंट है. Can we assume that 0.3 was there before this year also? If we assume that, then in that case both the years. But if we see that खाली ये 2 साल है तो केवल करंट ईयर, लास्ट ईयर वाला में 0.3 ऐड नहीं करना है, बिकॉज द क्वेश्चन इज नॉट सेइंग डिटेल दैट 2 years back 0.3 was there or not. They are saying both the years. So if we go as per the question only in the current year opening, but last year opening उसके पहले अगर खर्चा होता तब, so 0.3 not in first one but in the second one we need to add, I think, because the language is saying that both years, not saying about earlier also. If it would be saying earlier also, then I will be taking 0.3 add in the opening capital of first calculation also. Capital employed was 670 million at 1st January and 740 million at 1st January. Capital employed was 670 million. आपको इससे चालू करना है. 670 और 740 में ऊपर वाले सारे एडजस्टमेंट करने हैं. The pre-tax cost of debt 5%, the estimated cost of equity 12% and 14%, the rate of corporation tax 25%. This is given to calculate WACC. The company's capital structure 60 and 40% weight of equity and debt. There was no provision for deferred tax. Deferred tax का एडजस्टमेंट नहीं है. तो अगर हम लोग फिर से बात करें, we will start with 130, 110. We will deduct 25% of 130, 110. We will in the current year, we will add 2. In the last year, we will deduct 1. Then in both the years, we will add 10. Then in both the years, we will deduct 15. Then in both the years, we will add 0.3. तो वो बन जाएगा क्या? That will become net operating profit after tax. फिर उसके बाद कैपिटल इंप्लॉयड ओपनिंग फिगर 670, 740. Then this in the opening capital you need to add 6, and one another year opening capital you need to add 5. Then the research and development in the opening capital, nothing. In the another year opening capital you need to add 10. Then in the opening capital, opening one 30 add, in the second one 15 add. Then this 0.3 add only in the current year because both the year written. Then we will be getting capital employed figure. On that capital employed what we should earn. So WACC for 2010 it is 60% into 12% plus 40% into 5 into 1 minus 0.25, because debt is always after tax.
आप बोलेंगे कॉस्ट ऑफ डेट आफ्टर टैक्स निकालना है कि बिफोर टैक्स निकालना है, क्या करना है? कॉस्ट ऑफ डेट वी नीड टू कैलकुलेट आफ्टर टैक्स और बिफोर टैक्स? वाई आफ्टर टैक्स? हम लोग तो बोल रहे हैं कि शेयर होल्डर और व्हाट आई शुड से लोन वाला दोनों एक ही है, टैक्स का बेनिफिट उस पर नहीं लेना है, तो फिर आफ्टर टैक्स क्यों? Subrat, you are not getting what I am saying, that the theory behind EVA says that there is no difference between debt and equity. They both are owners. So when they both are owners, then in that case we should not be considering tax benefit of interest in the income calculation. So similarly in WACC, why we will be considering tax benefit on interest here? मेरे को पर्सनली ऐसा लगता है कि होना तो नहीं चाहिए, बट जनरली WACC में वो लोग टैक्स बेनिफिट हर जगह, और थ्योरी में भी लिखा हुआ है, दे कंसीडर कॉस्ट ऑफ डेट इनटू 1 माइनस टी। इसके पीछे लॉजिक मेरे को ऐसा लगता है, बिकॉज उससे कॉन्ट्राडिक्टरी तो हो रहा है, कि हम लोग को गवर्नमेंट को जो टैक्स देना है वो हमें पता है कि हमें इंटरेस्ट पे टैक्स बेनिफिट पाने के बाद ही देना है। तो हम जो इनकम निकाले उसमें हमने टैक्स बेनिफिट नहीं कंसीडर किया, लेकिन जब हम टैक्स पेमेंट किए तो हमने टैक्स पेमेंट कैश पेमेंट कंसीडर किया। अभी जब हम निकाल रहे हैं कि हमें कमाना कितना है कैपिटल के ऊपर, तो हम यही सोचते हैं हमें टैक्स देने के बाद क्या कमाना है, बिकॉज वैसे भी तो नो पैट वी हैव कैलकुलेटेड आफ्टर, वी आर नॉट कैलकुलेटिंग ऑपरेटिंग इनकम, वी आर कैलकुलेटिंग ऑपरेटिंग इनकम आफ्टर टैक्स। सिमिलरली दिस शुड बी आफ्टर टैक्स, the income which should be generated should also be after tax. So question मेरे को पर्सनली ऐसा फीलिंग आ रहा है, you are not calculating operating income, you are calculating operating income after tax. So in the earnings which you should generate, that should also be after tax. ये सोचकर ये लोग आफ्टर टैक्स ले, वैसे सभी जगह यही लिखा हुआ है कि डेट विल बी डेट इनटू 1 माइनस टैक्स रेट, so that you can see maybe everybody by default you will be doing that, but the logic behind that, you are calculating operating income after tax, so this should be also after tax. And in the next year it is 60% into 14% plus 40% into 5% into 1 minus t. तो आपका कॉस्ट ऑफ कैपिटल आएगा, दोनों साल का कैपिटल इंप्लॉयड से मल्टीप्लाई करेंगे, सो इट विल बी गिविंग यू द इनकम विच यू शुड बी अर्निंग। ईवीए जो आपका इनकम आया है एडजस्टेड प्रॉफिट, उससे माइनस करेंगे, देन इट विल बी गिविंग यू द वैल्यू ऑफ ईवीए। अगर ईवीए पॉजिटिव आएगा, बिकॉज दे परफॉर्म एन असेसमेंट ऑफ इकोनॉमिक यूजिंग इकोनॉमिक वैल्यू एडेड, परफॉर्म एन असेसमेंट ऑफ इको होम्स यूजिंग इकोनॉमिक वैल्यू एडेड, ब्रीफली कमेंट ऑन द रिजल्ट ऑफ योर कैलकुलेशन। अगर हम लोग का इकोनॉमिक वैल्यू एडेड दोनों साल पॉजिटिव आएगा, बढ़ेगा भी, तो हम लोग बोलेंगे अच्छा है, वी आर गिविंग क्रिएटिंग वेल्थ फॉर द शेयर होल्डर्स। अगर मान लीजिए निगेटिव आता है या बढ़ता नहीं है, गिरता है, देन वी विल से बैड, द कंपनी इज नॉट एबल टू इंक्रीज द ईवीए। हम लोग वहां पर वो बोलेंगे, और साथ में ये बोलेंगे कि ईवीए इज अ बेटर मेजर देन व्हाट डू यू से, बिकॉज इट इज डायरेक्टली को रिलेटेड विद शेयर होल्डर्स wealth maximization, it is not based on cash money, not based on accounting data, and it is focusing on cash measurement, but there are so many adjustments which are because comment on the result of your calculations। मतलब थोड़ा सा एक दो बात खराब भी लिखना है, मतलब you can see evaluation बोला नहीं है, लेकिन थोड़ा सा evaluation type mention भी करना होएगा। by whatever calculation you will do, you will comment on that, and some general knowledge about EVA advantage disadvantage need to mention, because it's a 14 marks question, and briefly comment, briefly मतलब short, by calculating figures जो बोलना है बोलेंगे, लेकिन साथ में 2-3 लाइन हम लोग वो भी बोलेंगे जो जनरल हम जानते हैं, EVA खराब और अच्छा क्यों है। एक बार पीछे आंसर देखना जरूरी है। 390
how to write a report to the CEO from the accountant, date, subject. अगर एग्जाम में ये लिखते हैं यू आर फॉलोइंग प्रोफेशनलिज्म, और अभी तो नए सिलेबस में वो लोग प्रोफेशनलिज्म अलग से मार्क्स डाल दिए, तो मैं अगर आपका ये पढ़ता हूं, मान लीजिए इस क्वेश्चन में प्रोफेशनलिज्म मार्क्स आर 3 और 4, मैं आपको इसके लिए 1 नंबर प्रोफेशनलिज्म का दूंगा कि यू आर प्रोफेशनल इन योर अप्रोच इन कम्युनिकेटिंग विथ योर बॉस, विथ बोर्ड मेंबर्स एंड ऑल दैट, बिकॉज सीईओ कोई नॉर्मल आदमी तो नहीं है। सब्जेक्ट वगैरह लिखना, फॉर्मेट ऑफ द रिपोर्ट हम लोग पढ़ेंगे, प्रोफेशनलिज्म के अंदर क्या क्या ध्यान देना है, बिकॉज द 4 प्रिंसिपल्स विच दे आर मेंशन्ड, स्केप्टिसिज्म एंड ऑल दैट वी विल कवर, दैट इज देयर इन नाउ ऑल द प्रोफेशनल सिलेबस, AFM, APM, then you can say SBR, SBL, Advanced Auditing and Assurance, Advanced Taxation. पहले प्रोफेशनलिज्म का मार्क्स ऑपरेशनल पेपर में अलग से नहीं था, अभी इस बार से चालू है। So for that reason they have added a topic professionalism in AFM, APM, Advanced Auditing and Assurance, Advanced Taxation सब जगह, and there are extra marks given to the students following the professionalism. वो प्रोफेशनलिज्म के लिए they have written some theories which is not you need to write, but you need to follow that in writing your answers. कोई बोलेगा पहले नहीं था, ये तो पहले अगर हो सकता है क्वेश्चन है तो भी तो प्रोफेशनलिज्म है, लेकिन अब अलग से उसके ऊपर एक्स्ट्रा मार्क्स है। The report performs an assessment of eco homes using economic value added and evaluates the use of value based management as a tool for managing performance. Calculation of no PAT, profit लिया, add research cost जोड़ दिया, less amortization of 15 less कर दिया, increase in allowance for doubtful debts adjust कर दिया, non cash add कर दिया, tax निकाल कर यहां less कर दिया। टैक्स कैसे निकाला, नीचे वर्किंग नोट 3 तो टैक्स तो दिया हुआ है, और जो इंटरेस्ट के ऊपर टैक्स बेनिफिट हम कंसीडर कर चुके, नहीं कंसीडर करना है, उसको जोड़कर लेस कर दिया। आप अगर 130 का 75% निकालोगे, सो 130 का 75% 13, 13, 26 एंड 5% इज 6.5, 32.5 वही आएगा। तो आपका फिगर वही आएगा, आपकी मर्जी है आपको कैसे निकालना है। कैपिटल इंप्लॉयड, अलावेंस ऐड कर दिए, कैपिटलाइजेशन ऑफ रिसर्च लास्ट ईयर नहीं था, इस साल ऐड कर दिए, देन कैपिटलाइजेशन ऑफ रिसर्च 30 और 15 ऐड कर दिए, नॉन कैश 0.3 ऐड कर दिए। फिर उसके बाद कैपिटल इंप्लॉयड आफ्टर टैक्स निकाले, WACC मल्टीप्लाई करके उस पर इनकम होना चाहिए 5 और 4.5, हमारा इनकम इतना हुआ है। EVA लास्ट ईयर से इस बार और ज्यादा है, और EVA पॉजिटिव भी है। EVA इज पॉजिटिव इन बोथ द ईयर्स, showing that eco homes is adding value. The EVA increased by 20.5% as compared to last year. This is particularly pleasing given the level of competition within the industry. However, it will be necessary to closely monitor the EVA to ensure that there is no reduction in the figures in 2022. मैं बोल रहा था कि यहां पर अब थोड़ा सा एडवांटेज डिसएडवांटेज में होता तो लिखता, बिकॉज इट इज अ 14 मार्क्स क्वेश्चन, EVA बड़ा है फिगर्स के ऊपर, और 2-3 लाइन और लिखना चाहिए एडवांटेज डिसएडवांटेज शॉर्ट में, जिससे कि हो जाए कवर कि भाई ब्रीफली एक्सप्लेन वेदर EVA के बेसिस पे आपका इवैल्यूएशन क्या है कंपनी का, कि EVA कैलकुलेशन से आपको क्या पता चला। अकॉर्डिंग टू मी, सॉरी, द कंफ्यूजिंग एरिया, नॉट कंफ्यूजिंग आई विल से, बट फिर भी प्लीज understand the following points. Point number 1, EBIT minus tax on EBIT। समझने के लिए EBIT equals to 1 lakh, tax rate 30%, then interest 20,000, the same example which I am taking from the last class. So
net operating profit after tax 1 lakh minus 30% of 1 lakh equals to 70,000. Alternatively, profit after tax equals to 1 lakh minus interest 20,000 into 1 minus 0.3. बिकॉज होता तो जिंदगी में यही है कि आप प्रॉफिट में से इंटरेस्ट लेस करते हो, फिर जो प्रॉफिट बचता है उस पर टैक्स देते हो, और फिर जो बचता है उसको बोला जाता है पैट. सो इट इज कमिंग 56,000. सो यू विल स्टार्ट नो पैट. You will start with 56,000 and you add interest after tax, which is 56,000 plus 20,000 into 1 minus 0.3. लॉजिक बिहाइंड दैट, जब आपने इंटरेस्ट 20,000 लेस किया, अल्टीमेटली 20,000 के कारण 30% टैक्स बच गया. नेट में इनकम से डिडक्ट हुआ ओनली आफ्टर टैक्स, तो आप उतना कोई ऐड करिए बिकॉज टैक्स तो ऑलरेडी अफेक्ट आ गया. सो द अगेन कमिंग 70,000. फिर से ऑल्टरनेटिवली आप फिर से पैट से चालू किए. 56,000 ऐड किए इंटरेस्ट विच इज डिडक्टेड, विच इज नॉट अ डिडक्शन, 20,000 लेस टैक्स बेनिफिट ऑफ इंटरेस्ट विच इज 20,000 into 30%. 20,000 into 30%. So that is coming 6,000. So it is again coming 56 minus 6 plus 20, which is 70,000. I like this one the best. मेरे को जो सबसे पहले मैंने किया यही मेरे को बेस्ट लगता है. बेस्ट वे. काहे को इतना माथा खराब करेंगे यार. चुपचाप से आप इंटरेस्ट भूल जाइए, सीधा सीधी जो ईबीआईटी उस पर टैक्स लगाइए. दिस इज पॉइंट नंबर 1. पॉइंट नंबर 2, प्लीज डोंट फॉरगेट टू एडजस्ट deferred tax effect in profit. कि नॉर्मली जो डेफर्ड टैक्स है उसको भी हम लोग खर्चा पीएल में दिखाते, लेकिन दैट इज नॉन कैश. कब देंगे नहीं देंगे, बिकॉज इनकम टैक्स, टैक्सेबल इनकम, अकाउंटिंग इनकम डिफरेंस, उसके कारण अकाउंटिंग होता है. दिस इज नॉन कैश. आपके लिए वो नॉन कैश है. Adjust that in capital employed also, बिकॉज उसके कारण प्रॉफिट अफेक्ट हुआ था. प्रॉफिट चेंज तो रिटेन्ड अर्निंग चेंज, तो इसके कारण कैपिटल इंप्लॉयड चेंज. इफ दे गिव नॉट डेफर्ड टैक्स स्टोरी सो मच दैट दे वांट, for all other adjustments in profit, I mean to say in no PAT, please ignore taxation effect
on those items. आप सोचेंगे प्रोविजन एड लेस किया, एमोटाइजेशन किया, ट्रेनिंग किया, उनका टैक्स नहीं सोचना है. टैक्स तो आपको बस टैक्स ईबीआईटी पे निकालना है, अदर आइटम्स का टैक्स इफेक्ट नहीं लेना है. फोर्थ, कैपिटल एम्प्लॉयड इज बिगिनिंग कैपिटल. So please remember to adjust items in capital of last year. प्रॉफिट में करंट ईयर का प्लस माइनस कर रहे हैं, लेकिन यू विल बी टेकिंग कैपिटल एम्प्लॉयड एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर. तो बिगिनिंग ऑफ द ईयर में पिछले साल का एडजस्टमेंट करना है. एमोटाइजेशन है, कैपिटल एक्सपेंडिचर है, कोई एड लेस है, कुछ भी. उसमें कंफ्यूजन होता है कि हम तो यहां कर रहे हैं, यहां क्यों. अरे भाई करेंगे, अगर आप प्रॉफिट में ऐड कर रहे हो कैपिटल, लेकिन वो नेक्स्ट ईयर में होगा, वो नेक्स्ट ईयर का ओपनिंग बैलेंस से एडजस्ट होगा. अभी इस साल के लिए ओपनिंग बैलेंस मतलब लास्ट ईयर वाला एडजस्टमेंट पकड़ना है. तो इसलिए ध्यान देना है कि ओपनिंग कैपिटल में क्या एडजस्टमेंट करना है. WACC debt will be after tax, as we are calculating operating profit आफ्टर टैक्स. ऑपरेटिंग प्रॉफिट हम आफ्टर टैक्स निकाल रहे हैं, तो ये भी आफ्टर टैक्स ही लेना है. अब जितना भी लैंग्वेज जो भी वो घुमाएंगे, देयर इज नो लिमिट. बट देन मान लीजिए दो हम लोग डिस्कस किया, आप जब नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं पहले इसको फिर से लिख लीजिए, कर लीजिए, फिर से ध्यान दे लीजिए. देन इन दैट केस आपको जहां से मर्जी है, एग्जाम किट, एग्जाम में आया, स्टडीड, जहां से भी आप वो क्वेश्चन को सॉल्व करिए, ध्यान दीजिए क्या प्लस माइनस करना है वगैरह वगैरह. पीछे से आंसर मिलाएंगे, सही हो गया, बहुत बढ़िया है, आप सब चीज सही किए. एक बार आंसर पढ़ लीजिए, देखिए कि कोई चीज हो गया सही, फिर भी समझ में आया कि नहीं. गलत हुआ, पीछे देखकर समझ में आ गया, उसका नोट बना लीजिए, फिर उसके बाद एक और दो कर लीजिए. देन यू विल बी गेटिंग कॉन्फिडेंस. अब आपको एग्जाम में ईवीए आए, कोई टेंशन नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं. हर चीज को ऐसे पढ़ना है कि मेरे को ये चीज आता है कि नहीं, चाहे वो थ्योरी हो, चाहे वो न्यूमेरिकल्स हो. वंस वी स्टडी लाइक दैट, यू नीड टू स्टडी लेस. और जब आप खुद पढ़ेंगे तो नोट्स तो बनाना ही होएगा ना. व्हेन यू स्टडी समथिंग, यू हैव टू मेक योर ओन नोट्स. मेरे को क्या चीज वापस रिवाइज करना है, व्हाट पॉइंट्स आई नीड टू रिवाइज, विच क्वेश्चन आई नीड टू रिवाइज अगेन, यहां ये ट्रिकी था. तो आपको एग्जाम के टाइम पे पता है मेरे को ये सब पढ़ना है, उसमें किसी से पूछने की जरूरत नहीं. बिकॉज एट द टाइम ऑफ एग्जाम यू आर द बेस्ट हु नो दैट व्हाट आई नीड टू रिवाइज, व्हाट आई शुड रिवाइज, सो दैट आई विल बी एबल टू परफॉर्म बेटर. वो दूसरा कोई नहीं बता सकता आपके लिए, बिकॉज हर आदमी का अपना समझने का एक तरीका है, ओन अंडरस्टैंडिंग लेवल, सब अपने हिसाब से सोचते हैं. एनीथिंग इफ इन ईवीए further to discuss for the time being, otherwise want to proceed. So proceeding. One more practical question that I want to discuss as a, what I should say, as a test in the class next week. चलेगा? आप कुछ भी करना, जहां पर डाउट होगा बात करेंगे, नो इश्यू. ठीक है ना? बिकॉज इसको खत्म करते हैं, वैल्यू बेस्ड मैनेजमेंट इसको खत्म करते हैं. बिकॉज
नहीं, एक्चुअली क्या है, अकॉर्डिंग टू मी जैसे जाते हैं 380, ऐसे इवैल्यूएशन इज नॉट रिटन, दे आर नॉट आस्किंग कि आपको एडवांटेज डिसएडवांटेज लिखना है, लेकिन जब लिख रहा है ब्रीफली कमेंट ऑन द रिजल्ट्स ऑफ योर कैलकुलेशंस, तो कैलकुलेशन के बेसिस पे तो आप बताएंगे, लेकिन मैं अगर हूं एग्जाम में तो मैं बोलूंगा कि ईवीए इज डायरेक्टली को रिलेटेड विद शेयर होल्डर्स वेल्थ मैक्सिमाइजेशन। तो जब मैं कैलकुलेशन बता रहा हूं, मैं स्टार्ट ही ऐसे कर रहा हूं, ईवीए इज डायरेक्टली को रिलेटेड विद शेयर होल्डर्स वेल्थ मैक्सिमाइजेशन, द कंपनी हैज जनरेटेड पॉजिटिव ईवीए, तो मैं कैलकुलेशन के बेसिस पे एडवांटेज बता दिया। अब मैं 2 लाइन लिखना चाह रहा हूं कि वी नीड टू बी कॉशियस दैट ईवीए इज ऑल्सो not a pure cash adjustments, it is not a cash flow, and there are so many adjustments which we are doing where there is no specific guidelines, so it will be beneficial based on EVA when we will be able to communicate our staff stakeholders set their target properly। मैं थोड़ा सा लिखना चाहूंगा 2 लाइन कि भाई जब ब्रीफली कमेंट ऑन रिजल्ट्स है तो रिजल्ट्स को बोलने के बाद मैंने 2 लाइन उसके ऊपर बता दिया। मैं अगर होता तो एग्जाम में, बिकॉज वाई आई एम सेइंग दिस, इट इज अ क्वेश्चन ऑफ 14 मार्क्स, कैलकुलेशन में कोई ज्यादा देर नहीं लग रहा है, बिकॉज द प्रेजेंटेशन विच दे आर डूइंग आई एम नॉट लाइकिंग, उतना कौन लिखेगा यार, सीधा सीधी प्रॉफिट से चालू करेंगे, 25% लेस प्लस माइनस, हम लोग तो थोड़ा कम लिखेंगे, जल्दी करेंगे, तो 14 मार्क्स का क्वेश्चन में यू आर गेटिंग 20 मिनट्स इन टोटल अराउंड, 20 मिनट्स में आप कैलकुलेशन वाला पार्ट मेरे ख्याल से 10 मिनट में कर दोगे, तो आप 10 मिनट तो और नहीं लगाओगे इस थ्योरी लिखने में, बट आप अगर 3-4 मिनट भी अच्छे से थ्योरी लिखते हो पूरा नंबर मिल जाएगा ना, 14 आउट ऑफ 14 ऐसा। कहीं कहीं पर ऐसा होता है कि कभी ज्यादा भी पूछता है और हम लोग को ऐसा लग रहा है कि उतना हम टाइम नहीं दे पाएंगे, देन इन दैट केस हम अपने आप को जो लिखना है उसको रोकते हैं, वी स्टॉप आवरसेल्व्स दैट वी कैन नॉट राइट। तो यहां पर एक स्कोप मिल रहा है कि भाई 14 नंबर फ्री, पूरा 14 का 14 आ जाए, 14 आउट ऑफ 14, तो 2 लाइन लिख देंगे तो बेटर रहेगा। कि भाई कमेंट करने के लिए हमने कमेंट में एक एडवर्स बात भी डाल दिया कि इस बात को ध्यान देना है इस कैलकुलेशन के बेसिस पे डिसीजन लेने के पहले। नो इश्यू। नाउ वैल्यू बेस्ड मैनेजमेंट, EVA is a part of value based management, EVA को value, but value based management is not only EVA, it can be a company's cash flows which they are generating present value of those cash flows, it is not present value calculation, or we can say that it is cumulative EVA। आपका first year EVA is 10,000, second year EVA is 5,000, so cumulative EVA 10 plus 5 15, जो टोटल क्यूमुलेटिव ईवीए दैट कैन बी सेड एज अ मार्केट वैल्यू ऑफ द कंपनी, बिकॉज हम लोग उसके अंदर सारा फेयर वैल्यू वगैरह एसेट्स का लिए कि ये इतना एक्स्ट्रा वैल्यू है कंपनी का एज कंपेयर टू जो फेयर वैल्यू है, दिस इज द एक्स्ट्रा वैल्यू ऑफ द कंपनी दैट कैन बी सेड एज टू बी इनकॉर्पोरेटेड इन द शेयर प्राइस और द शेयर वैल्यूएशन। और अगर आपको ऐसे नहीं करना है तो इन दैट केस यू कैन इनकॉर्पोरेट कि इस कंपनी जो भी कैश फ्लो जनरेट करेगी, whatever cash flow we are going to generate in future, present value of those cash flows will be treated as value of the organization, value for the shareholders. When we calculate present value, we are indirectly using NPV, we are indirectly using IRR, maybe in place of calculating NPV I will calculate return। NPV calculate करने के लिए what the cash flow means cash inflow minus cash outflow, what will be the net cash inflow by the organization, और उसको at a particular discount rate we will discount and we will calculate value। नॉर्मली जब हम लोग एनपीवी पढ़ते हैं, नॉट हियर, नॉर्मली एनपीवी मतलब होता है कि इफ आई एम डूइंग अ प्रोजेक्ट एंड इन दैट प्रोजेक्ट इन्वेस्टमेंट इज 1 million 2 million 5 million और कैश फ्लो 4 5 10 साल मिलेगा, तो वो कैश फ्लो का प्रेजेंट वैल्यू माइनस इनिशियल इन्वेस्टमेंट वी गेट एनपीवी। हम लोग बोलते हैं कि अगर हमको प्रोजेक्ट से जैसे 12% हियर इट इज रिटन 12% चाहिए, तो हमने प्रेजेंट वैल्यू लाया, प्रेजेंट वैल्यू मींस 12% डिडक्टेड मींस 12% गिवन टू द इन्वेस्टर्स दोज हु वांट 12%,
और फिर प्रेजेंट वैल्यू में से इन्वेस्टमेंट माइनस किया, तो हमने 12% भी उनको दे दिया और साथ में उनका इन्वेस्टमेंट भी वापस दे दिया। लेकिन उसके बावजूद देयर इज सरप्लस। सरप्लस किसके लिए? फॉर द शेयर होल्डर, बिकॉज डेट होल्डर विल नॉट बी गिवन एनीथिंग एक्स्ट्रा. That surplus the shareholder will be getting extra because of this project. When the shareholder will be getting extra as a dividend or whatever, then in that case, definitely the share prices will increase. Company का value बढ़ेगा. So NPV has direct correlation with the shareholders' wealth maximization. Similarly, VBM, value-based management, has a direct correlation with the shareholders' wealth maximization. It is not based on accounting data, it is based on EVA, which is adjustment in the accounting, one measure. It can be based on cash flow, time value of money, present value calculations. It can be based on cumulative economic value, which are more directly related with the shareholders, because in a profit-oriented organization, shareholder wealth maximization is the prime objective. In a not-for-profit oriented organization, maybe the objectives are different, but in a profit-oriented organization, shareholders wealth maximization. Now EVA कब बढ़ेगा? Cumulative EVA will be more when shareholders कंपनी का टोटल वैल्यू कब बढ़ेगा? जब कंपनी अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट करेगी, जब कंपनी जो अपना ऑब्जेक्टिव्स है कि मेरे को ये बिजनेस करना है, अच्छा बिजनेस करेगी, प्रोडक्ट इनोवेशन लाएगी, when the company will be doing customer satisfaction, employee satisfaction. यानी कि अगर आप इस तरह से वैल्यू को सोचते हैं, इस तरह से मेजरमेंट को सोचते हैं, then in that case you are not only thinking about your shareholders. Profit oriented organization shareholder के बारे में सोचेगा, but आप shareholder के अलावा सबके बारे में सोच रहे हैं. You will be able to set the targets for each manager, for each department, for each strategic vision, for each employee, whether it's strategic, whether it's operational, whether it's a managerial level person, सबके लिए target आप properly set कर पाएंगे. You will be able to bring goal congruence. That intention of the objective of a manager will be correlated with the objective of the whole organization. आप अपना strategies वगैरह properly designed कर पाएंगे, टारगेट स्मार्टली सेट कर पाएंगे, स्पेसिफिक, मेजरेबल, अटेनेबल, रेलेवेंट, टाइम बाउंड. लेकिन प्रॉब्लम क्या होएगा? क्या नहीं लगता इतना सारा चीज सोचने में बहुत कंफ्यूजन होगा, फाइट होगा, कोई लोग समझेंगे नहीं, किसी को समझ में नहीं आएगा, ट्रेनिंग देना पड़ेगा, सम मेजर्स विल बी गिविंग करेक्ट थिंग, सम मेजर्स विल बी गिविंग रॉन्ग थिंग, सो दैट प्रॉब्लम विल कम. बट अभी दिस इज एन IT एज where the information system, executive information और जो भी information system है, management, उनको सबको properly structured किया जा सकता है. Virtual organization का जमाना है, where there is not that we need to be connecting with the person on day-to-day basis, और control किया जा सकता है with the robots, with the artificial intelligence. Those things can be done. So the world is saying that analyzing the performance measures, setting the performance measures based on profitability, based on financial, RI, ROI, ROC, उससे फायदा नहीं होएगा. We need to think more deeper, more analysis, जिससे कि हम value for the entire organization improve कर पाएं. That is treated as value based management. अब normally question क्या होता है? There is no practical numerical here. Because numerical तो EVA ही है, लेकिन NPV, IRR, या यू कैन से EVA का मार्केट वैल्यू, क्यूमुलेटिव, या यू कैन से प्रेजेंट वैल्यू, उसको भी आदमी लिख सकता है. लेकिन आदमी नॉर्मली प्रॉपर प्रेजेंटेशन नहीं कर पाता वैल्यू बेस्ड मैनेजमेंट है क्या. ऑब्वियसली जो यहां लिखा हुआ मेरे को भी नहीं याद है, अलग अलग जगह से मैंने लिया है, अलग अलग स्टोरी है, लेकिन मेरे को ऐसा फीलिंग तो आना पड़ेगा ना कि इफ द क्वेश्चन विल बी देयर, आई कैन राइट समथिंग अबाउट वैल्यू बेस्ड मैनेजमेंट. There is a slight aside, but it's covered here in carries forward introduction. Being able to evaluate and improve a company's performance using new performance management system is an important capability of APM. Value-based management is one such system. Business are under increasing pressure to look at the long-term value of organization, but traditional profit-based measures such as ROC, RI are short-term and financial, they are not non-financial. So what is value-based management? Value-based management is an approach
is an approach to management whereby the company's strategy, मैनेजमेंट करने का तरीका, कंपनी को मैनेज करने के लिए, परफॉर्मेंस मैनेजमेंट करने के लिए, the company's strategy, the company's objectives, the company's culture and the processes are aligned. कौन कैसे होगा, स्ट्रैटेजी क्या होगी, उसके लिए ऑब्जेक्टिव्स क्या होगा, ऑब्जेक्टिव्स वुड बी स्मार्ट, कल्चर कैसा बनाएंगे, प्रोसेसेस कैसा अलाइन करेंगे, टू हेल्प द कंपनी फोकस ऑन की ड्राइवर्स ऑफ शेयर होल्डर्स वेल्थ एंड मैक्सिमाइज इट्स वैल्यू. जो शेयर होल्डर वेल्थ मैक्सिमाइज करने के लिए इंपॉर्टेंट ड्राइवर्स है, वी विल बी थिंकिंग अबाउट दैट एंड वी विल मैक्सिमाइज देम. वैल्यू बेस्ड मैनेजमेंट टेक्स द इंटरेस्ट ऑफ शेयर होल्डर्स एज इट्स प्राइम फोकस. It begins with the view that the value of company and its shareholders is the total value of its discounted cash flow. To measure, अगर हम लोग को measure करना है value based, under VBM a single overall organic metric is established such as EVA. EVA is a part of a measurement system in VBM. Then value drivers are identified. EVA पता चल गया तो EVA बढ़ेगा कैसे, वो ध्यान देना है. These are activities linked to long term. मान लीजिए हम लोग को एम्प्लॉय ट्रेनिंग देना है, मान लीजिए न्यू प्रोडक्ट इनोवेशन करना है, R&D करना है. R&D जो करेगा वो लोग क्या करेंगे, क्या टारगेट होगा, वैसे सेट करेंगे. मैनेजर्स कैन इन्फ्लुएंस एंड कंट्रोल, कैस्केड थ्रू आउट ऑल लेवल्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, लिंक टू स्टाफ एंड मैनेजर्स एंड कवर फाइनेंशियल नॉन फाइनेंशियल फैक्टर्स. मेजर्स ऑफ वैल्यू बेस्ड मैनेजमेंट. वन इज EVA. 3 मेजर बता रहे हैं. EVA प्राइमरी मेजर, अ पॉजिटिव EVA इंडिकेट्स value based management. Market value added, cumulative EVA. Accumulated EVA generated since organization was formed. And shareholder value added. Use discounted cash flow technique NPV and values when the business rather than the project. Normally the SVA, shareholder value added, is considered for whole organization. But this EVA and market value can be considered for a specific department or a division also. अगर हम लोग को वैल्यू बेस्ड मैनेजमेंट करना है, द फर्स्ट स्टेप, डेवलप द स्ट्रैटेजी ऑफ द. स्ट्रैटेजी मतलब कौन सा बिजनेस करेंगे, कौन से मार्केट में जाएंगे, कौन सा नया बिजनेस डेवलप करेंगे, ऑर्गेनिक करेंगे, इनऑर्गेनिक करेंगे. स्ट्रैटेजीज विच वी डिस्कस्ड इन द इनिशियल चैप्टर्स. टू मैक्सिमाइज शेयर होल्डर्स वैल्यू measured using a single overall organizational matrix, value drivers defined at all levels. मतलब अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट्स में, डिपार्टमेंट्स में क्या वैल्यूज ड्राइवर्स होंगे जो इस स्ट्रैटेजी को फुलफिल करेंगे. परफॉर्मेंस टारगेट्स क्रिएटेड फॉर ऑल ड्राइवर्स. दीज आर बोथ शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म, फाइनेंशियल, नॉन फाइनेंशियल, अलाइन टू वन अनदर. और ITC कंपनी है तो अलग अलग डिपार्टमेंट है, डिविजन्स है, कोई भी कंपनी है उसमें सारे टारगेट्स, वैल्यू ड्राइवर जो वैल्यू बढ़ाएंगे उन टारगेट्स को हम सेट करेंगे. वो टारगेट को अचीव करेंगे मैनेजर नहीं, ऑपरेशंस स्टाफ. ऑपरेशंस स्टाफ का टारगेट सेट करेंगे स्पेसिफिकली, विच इज स्पेसिफिक, मेजरेबल, अटेनेबल. स्पेसिफिक ऑपरेशनल प्लान्स आर डिफाइंड टू अचीव दोस टारगेट्स. एंड देन परफॉर्मेंस मेजर्स एंड रिवॉर्ड. जब परफॉर्मेंस अचीव होगा, टारगेट अचीव होगा, रिवॉर्ड देंगे, एक्शन लेंगे, जिससे कि वी विल बी एबल टू अचीव वैल्यू फॉर आवर शेयर होल्डर्स. The advantage, evaluation, you can say advantage, disadvantage. Focus on value, not for profit. Therefore, takes the interest of shareholder as primary interest. Long term, forward looking. Because forward looking, value drivers are established and aligned to all levels of the organization. Not only particular department, sab jagah. Controllable targets created. Specific plans are created to help the employee achieve the targets. And performance metrics, financial, non-financial, are created that are explained to the staff and managers. Requires a cultural shift with new objectives. जो सौरभ ने पूछा कि भाई हम लोग अपना परफॉर्मेंस मेजरमेंट सिस्टम चेंज करेंगे, मे बी फॉर वैल्यू पर्पस, बट लोगों को अच्छा नहीं लगता. लोगों को लगता है पहले ही पुराना ही ठीक था. शेयर होल्डर्स में नीड टू एजुकेट. शेयर होल्डर को समझ में नहीं आ रहा है कंपनी क्या सोच रही है. When you are having shareholders meeting, newspaper articles, आपको उनको communicate करना होगा. Requires a change, adopt organization culture, commitment and leadership from the board. अगर value based management करना, operations staff नहीं सोचेंगे. The commitment should come from top management. It may be difficult to identify value drivers. बोलने में अच्छा है, ये बिजनेस करेंगे, ये करेंगे, ऐसा करेंगे, कोई फिक्स फॉर्मूला थोड़ी ना है. There is no formula to identify that.
मे नीड टू अडॉप्ट MIS टू मेक अकाउंट. आपको मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम को और बेहतर डेवलप बनाना होगा. एंड कैन बिकम एन एक्सरसाइज एवरीथिंग बट डूइंग नथिंग. सब चीज बस करते रहेंगे, ऐसा करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे और करेंगे कुछ नहीं. द आउटकम इज नथिंग. इट मे हैपन. दैट इज इवन दो वैल्यू बेस्ड मैनेजमेंट इज द बेस्ट मेजर, बट फिर भी यहां पर भी प्रॉब्लम्स है, डिफिकल्टीज कैन अराइज. Since EVA and NPV are two of the key measures of EVM, the advantage and disadvantage of EVM and NPV can also be related. NPV का एडवांटेज वगैरह प्रीवियस टॉपिक्स में हमने जब प्रॉफिट मोटिव में किया वहां पर था. EVA का एडवांटेज यहां ऊपर किया, आप वो भी लिख सकते हैं. बोलने का मतलब क्या हुआ, आपको ये पॉइंट्स ऐसे कॉमा फुल स्टॉप याद नहीं हो सकता है, ना करना है. लेकिन जब आप क्वेश्चन का आंसर लिख रहे हैं वो लय में आ रहा है कि नहीं, कैसा आप लिख पा रहे हैं विदाउट लुकिंग एट दी आंसर्स, क्रिटिकली वो सही है कि नहीं, एग्जामिनर का कमेंट क्या है, मार्किंग गाइडलाइंस कहां पर है. आप अगर पेपर किए तो वो देखे कि नहीं. एक हो गया पेपर कर लिया, मोटा मोटी ठीक है, मेरे को इंप्रूवमेंट कहां, मेरे को वो लेवल पे तो जाना पड़ेगा ना. आई नीड टू डू दैट, बिकॉज नहीं तो थ्योरी तो ओपन है. इफ आई विल टेक टेस्ट ऑफ 500 स्टूडेंट्स, 500 स्टूडेंट विल बी राइटिंग डिफरेंट इंग्लिश लैंग्वेज इन द आंसर. लेकिन नंबर किसी को ज्यादा, किसी को कम, किसी का ऐसा वैसा, क्यों? कुछ हो सकता है पढ़े नहीं है, लेकिन जो लोग पढ़े हैं उनमें नंबर सबका बराबर क्यों नहीं? बिकॉज इसका मतलब मेरे में कोई प्रॉब्लम है जिसको मेरे को वर्कआउट करके ठीक करना है, तो प्रॉब्लम्स दूर हो जाएंगी. थ्योरी तो पूरा चैप्टर में बढ़ती है, पूरा सोल्यूशन बढ़ती है, लेकिन आपको कैसे पता चलेगा कि आप वो थ्योरी ठीक लिख रहे हैं कि नहीं, जब आप अपने आप को टेस्ट नहीं करेंगे रेगुलरली. That's the thing I will say. अगर किसी का गड़बड़ी हुआ भूल जाइए उसको, जो भी हुआ you can't change that past. Just learn from mistakes and do such a type of study that you will be getting 70 plus. You score world rank 1. मजा आ जाएगा यार आपको और मेरे को दोनों को कि भाई हमारा स्टूडेंट वर्ल्ड रैंक 1 लाया APM में. क्योंकि जब वो ऑडिटिंग के अंदर रैंक लाया तो इंस्टीट्यूट का सारा ACCA लोग फोन करके बोला कि यार ऑडिटिंग में रैंक लाता है आपका स्टूडेंट, वाह क्या बात है. तो आप अगर APM ऐसा सब्जेक्ट में रैंक लाएंगे तो कुछ खास बात है ना. ऐसे तो रैंक सभी जगह सोचना चाहिए, बट एटलीस्ट इन थ्योरी सब्जेक्ट्स विच इज ओपन एंडेड, इट्स नॉट इजी टू स्कोर हाई मार्क्स. बट व्हेन यू स्कोर हाई मार्क्स यू विल बी वेरी सेटिस्फाइड इन योरसेल्फ, और साथ में आपके बाद फायदा मेरे को बहुत ज्यादा होएगा, बहुत मजा आएगा. सारा इंस्टीट्यूट का लोग हेड से हेड, ACCA का यूके हेड फोन करता है यार कि व्हाट अ लवली रिजल्ट, बढ़िया होने से. दैट इज नॉट, कैन नॉट बी कैलकुलेटेड विथ मनी. उसका मनी से कोई ताल्लुक नहीं है, दैट इज अ बाई प्रोडक्ट. बट व्हेन द रिजल्ट इज गुड, दैट मीन्स वॉट एवर आई एम डूइंग इन द राइट डायरेक्शन. लेकिन रिजल्ट अगर अच्छा नहीं है तो मैं भी तो कहीं गड़बड़ हूं ना. तो इट इज रेजिंग अ क्वेश्चन ऑन माई एबिलिटी ऑल्सो, दैट आई एम ऑल्सो नॉट टीचिंग वेल, आई एम नॉट एजुकेटिंग प्रॉपरली. Okay, so we will be doing transfer pricing and all other areas in the next class. Not going to take test because अभी हम लोगों का नॉन फिनेंशियल परफॉर्मेंस मेजर्स में माने पब्लिक सेक्टर और अदर्स क्वालिटी वगैरह बाकी है, उसको करेंगे तब. So I think in the next class Wednesday we will be taking test on performance measures, not on Monday. Monday हम लोग को पूरा टाइम लग जाएगा. But don't take tension कि अगर आपका नहीं हुआ, मैं इतना ही बोलना चाह रहा हूं. नहीं हुआ, गलती है, उसको सुधारना है. दैट्स ऑल. आई नीड टू वर्क ऑन माई वीक एरियाज, देन एवरीथिंग विल बी फाइन. ओके, लीविंग फॉर टुडे. थैंक यू टू ऑल ऑफ यू. जनक्रीत जी और कुणाल जी, टेंशन नहीं लेना है, बस 1.5 महीने का और बात है. ठीक है. Yes, thank you. Tada, bye bye.